तिलावत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। This proceeding is being recorded and going live also. जो ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं वो अपना तारुफ करवा दें पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अज़मत महमूद है जी, मैं सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट है जी। सर ज़ीशान शबीर राना सर, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट सर। सर इशफाकुर रहमान, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। अस्सलाम वालेकुम सर, वलीद अशरफ, डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट पंजाब। शेख नदीम अमजद, डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब। सर अब्दुल एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। ग्रेट। ऑडिट आपने वर्किंग पेपर में बताया है कि देयर आर कपल ऑफ पैराज जो यू वांट टू सेटल, ये प्री पीएससी में आपने डिसाइड किया है? जी सर, प्री पीएससी में और उससे पहले जो वेरिफिकेशन हुई थी उसकी बेसिस पे हमने रिकमेंड किए हैं कुछ पैरेज फॉर सेटलमेंट। वो अब आपने सर इधर हमें गाइडेंस देनी है। हाँ। राना आफ्ताब साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ज़रा कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना, ये सेक्रेटरी साहब ने देना ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन, और नाल दूसरी भी देना रूल्स वाली, ये प्रिविलेजेस वाली भी। Should I start, sir? Sure. If you go to Constitution, somebody said how to protect the Constitution. Only if you can implement it. इसमें ये है कि we are not going through according to the Constitution of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. If I go to the Article 38, उसमें लिखा है कि the state shall, उसमें डी आता है, provide basic necessities of life such as food, clothing, housing, education and medical relief for all such citizens irrespective of sex, caste, creed or race. If I am correct? बिल्कुल, you're correct sir. Yeah. उसमें फिर then I go to the Punjab Privileges Act, उसमें I go to the Article 8, a member shall be entitled for himself and for his parents, spouse, real and stepsons and daughters, wholly dependent upon to face indoor and outdoor facilities, right? So we are members of the assembly who are entitled for this facility, irrespective of all citizens are. इसमें ये है कि I had raised this issue on the floor of the house way back in it was I think last June or something, and a special committee was constituted which was headed by Mr. Khurram Virak at that time. उसमें उन्होंने लिखा था the meeting commenced with recitation non-provision of medicines to MPs of Provincial Assembly of the Punjab. On invitation by the convener, Mr. Aftab Ahmad Khan Mover placed before the committee that as per Section 8 of the Punjab Provincial Assembly, a member is entitled for himself with Sara Likhke ji. उन्होंने फिर specialized secretary specialized healthcare responded to इस पे किया, उन्होंने कहा कि जी we will do the following actions. The law department would make a reference to the finance department for allocation of independent funds for the assembly dispensary or staff. Till the provision of funds to the assembly dispensary, the administrative department will ensure provisions of medicine to the honorable members from Services Hospital or through local purchase without any delay. Pending cases of provision as well as reimbursement claims should be settled down urgently. Amendment of a pharmacist and a senior medical officer would be made at the earliest to avoid such lapse in future. Right? So there has been a clear iski jo hui hai, non-implementation of the direction of this committee. And now I read what can this committee do?
If you take the Punjab Privileges Act जो हमारा है, उसमें presenting to the assembly or a committee any false, untrue, fabricated or falsified document with intent to deceive the assembly or its committee or destroying or materially damaging any document knowingly or having reason to believe that it has been requisitioned by the assembly or a committee or giving a false evidence before the committee, refusing to be examined और उस पे उसकी punishment is the imprisonment of either description 1 month or fine of 5,000. So this has been a clear violation of the direction of that committee which was given to the department. You being the secretary of the health department, this was under your domain to implement it. If a member cannot get a medicine, for example, unfortunately, I have been coming to the assembly since 1988. I have been gone through all this. But if unfortunately I needed a medicine, मुझे 2 माह 3 माह मिलती नहीं है. So let's say for if even insulin वो कहते हैं, if we say कि जी इसके reimbursement दे से कि नहीं, if we make a call to the doctors फैसलाबाद, उसकी आपकी entitlement नहीं है. So what is this going on? How can you provide a facility to the ordinary citizen, which is under Article 38, they are entitled for it. So can you respond to my this query कि why this medicines are not provided? जो उन्होंने direction दी थी, they have not been implemented. So where is this going on? How are you running the system? थैंक यू वेरी मच सर. सर आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया. एक तो डिस्पेंसरी जो पंजाब असम्बली के हैं उसको फंक्शनल करने के बारे में, और दूसरा आपने ये कहा कि जो लर्नेड पार्लियामेंटेरियंस को सर्विसेज हॉस्पिटल से जो मेडिसिन मिलनी चाहिए उसकी प्रोविजन के अंदर आपको कोई डेफिशिएंसी फील होती है. तो सर जो लास्ट PSC 1 की मीटिंग हुई थी जिससे बाद में मुझे डायरेक्शन मिली थी बाय द ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी कि जी हम डिस्पेंसरी को देखें, तो उसके फ़ौरन बाद सर हमने MS और प्रिंसिपल सेम्स को, MS ऑफ सर्विसेज हॉस्पिटल एंड सेम्स की जो प्रिंसिपल हैं उनको यही डायरेक्शन दी थी कि वो यहाँ पर स्टाफ की कमी को पूरा करें. एंड साइमल्टेनियसली हमने ये भी उनको ये डायरेक्शन दी थी कि जिस तरीके से भी पॉसिबल हो सकता है, पॉसिटी शॉर्टेज ऑफ फंड्स अपनी जगह पर अवेलेबल हर जगह पर है सर, लेकिन हमने ये डायरेक्शन उनको दी थी कि हमने अपने पार्लियामेंटेरियंस की मेडिसिन की शॉर्टेज को किसी कमी में किसी सूरत में पूरा नहीं होने देना. ये जो आपने आज ये पॉइंट मेरे सामने रेज़ किया है, मेरे तक आज अगर मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो ये चीज़ आपने मुझे आज इंडिकेट की है. मुझे जो बताया गया था कि जी जो फंड्स हैं वो स्पेशल एलोकेट कर दिए गए हैं लोकल परचेज़ के, जो कि पार्लियामेंटेरियंस की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है. इन एडिशन टू दैट मैंने सर्विसेज हॉस्पिटल को ये भी कहा है कि वो फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अपना जो बजट बल्क परचेज का वो हम फाइनेंस से हम डिमांड करेंगे, उसमें पार्लियामेंटेरियंस के एक सेपरेट ब्लॉक लेंगे जी, ताकि उसको हॉस्पिटल की मेन जो स्ट्रीम उनका जो बिज़नेस है मेडिसिन की प्रोविजन का उससे सेपरेट किया जाए. लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है इसको मुझे अलाउ मी, क्योंकि आई हैव टू कम बैक टू PSC टुमारो ऑल्सो एंड डे आफ्टर. मैं आपको कल इसके बारे में कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बना के दूंगा और सबमिट करूंगा कि हम किस तरह की मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या एलोकेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं आई कैन नॉट शेयर माय इंफॉर्मेशन. You are correct, but my point is I need a medicine today. Sir. I go to the dispensary, I give them that whatever उनका जो है डॉक्टर साहब का, Sir. और 2 माह मुझे मिलती नहीं है. If I buy it from उसकी भी reimbursement में, this assembly passes all the bills, everything, ये जो allocate करते हैं आप, डिमांड्स आपकी हम करते हैं, जो डिमांड आपकी क्रिएट करते हैं आप भेजते हैं, हम उसको पास करते हैं, मगर जो करते हैं दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इट. सर मैं सबमिट करता हूँ जी. इसमें गुजारिश ये कि आपने अब ये थोड़ा सा सिस्टम के अंदर मैं फिर मज़ीद डिटेल में जाना चाहूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हमने जब अपने मेडिसिन के डिस्पेंसेशन के सिस्टम को देखा तो हमने बहुत सारे अंदाज में, नॉट फॉर द पार्लियामेंटेरियंस बट जनरली हमने ये देखा कि हॉस्पिटल्स के अंदर लोकल परचेज बहुत ब्रांड के नाम के साथ हो रही थी, जिसको हमने सिस्टम के अंदर चेक्स डेवलप किए. अब हमारा हॉस्पिटल का जो HIMS सिस्टम है वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स कैन नॉट प्रोक्योर और ऑर्डर फॉर लोकल परचेज ऑफ अ ब्रांडेड मेडिसिन. लेकिन ये एक्सेप्शन हमने पार्लियामेंटेरियंस के लिए अभी भी रखी हुई है कि पार्लियामेंटेरियंस जिस ब्रांड की मेडिसिन के बारे में ख्वाहिश का इजहार करेंगे वो मेडिसिन अभी भी प्रोक्योर होगी. मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अलाउ मी टू कम बैक टुमारो, इस पूरे के डाटा के साथ मैं आपके सामने सबमिट करूँगा कि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर में किस तरह की मेडिसिन हम प्रोक्योर कर रहे हैं, कैसे आपके सामने
सबमिट करेंगे और हम आपकी डिस्पेंसरी को कैसे फंक्शनल कर रहे हैं। ठीक है सेक्रेटरी साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि जो स्पेशल कमेटी बनी थी उसकी जो मिनट से और उसकी प्रोसीडिंग से आपको कोई इल्म नहीं था? सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो कमेटी आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट्स ऑफ दैट मीटिंग, वो कब हुई थी सर? ये बड़ी फेमस मीटिंग हुई थी, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट एंड उस पे हमारे सेक्रेटेरिएट भी वाज पार्ट ऑफ दैट। सेक्रेटेरिएट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिलके इस मसले को हल करना था एंड लास्ट जून की बात है। बट बड़ी रीअश्योरिंग बात आपने की है, बट एंड एक डायरेक्शन भी नोट कर लें कि यू सेड कि नेक्स्ट जून में जो आप प्रोविजन रख रहे हैं परचेज की, उस पे आप सेपरेट ब्लॉक एलोकेशन करेंगे फॉर ऑलरेडी जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दी हुई है कि नॉट ओनली फॉर द पार्लियामेंटेरियंस, सर्विसेज हॉस्पिटल आल्सो केटर्स फॉर द मेडिकल फैसिलिटी ऑफ जजेस। तो हम वो भी सर एक सेपरेट ब्लॉक के तौर पे लेके आ रहे हैं ताकि जो हॉस्पिटल का नॉर्मल ऑपरेशन है, जो जनरल सिटीजन नॉर्मल सिटीजन वहाँ जाता है, उसको मेडिसिन भी मिलती रहे और साथ साथ उसी बजट के सेपरेट ब्लॉक के अंदर पार्लियामेंटेरियंस और जजेस को भी मिले। सेक्रेटरी साहब, हम कोई अनड्यू फेवर नहीं ले रहे, जो एंटाइटलमेंट है हमें काइंडली वो इंश्योर कर दें जो हमारी एंटाइटलमेंट है। एंड वन मोर थिंग, यू आल्सो सेड दैट ब्रांडेड मेडिसिन आर नॉट अलाउड। अगर वो आम आदमी के लिए अलाउड नहीं है तो फिर हमारे लिए भी नहीं होनी चाहिए सर। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। रीअश्योरिंग, लेकिन इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक हम जो प्रोविंशियल असेंबली के ऑनरेबल मेंबर्स के लिए जो उनकी प्रिस्क्राइब और ख्वाहिश के मुताबिक मेडिसिन थी वो प्रोवाइड करते हैं। बट जस्ट इंश्योर द क्वालिटी। हम अपने सिस्टम के अंदर से जेनेरिक नेम्स के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू कर्टेल द डिस्क्रेशन ऑफ आवर कंसल्टेंट्स एंड डॉक्टर्स देयर कि वो ये कहें कि जी वो वाली दवाई लेकर आओ। हम कह रहे हैं सॉल्ट का नाम आइडेंटिफाई करें, वो हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन दिस सर्विस विल कंटिन्यू। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ये हम इंशाल्लाह अपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए अपनी डिस्पेंसरी को भी फंक्शनल करेंगे और ये जो मेडिसिन का इशू है इसको विल कम बैक टू यू इंशाल्लाह। Why don't you make this dispensary of the assembly independent? Why don't you allocate, let's say assembly कर लें, आप इसको allocate ही लहदा कर दें पहले services. I think somebody must be presenting services hospital. Is there somebody from the services hospital? सर सर्विसेज का आज एक्चुअली एजेंडा आइटम्स उसमें आप उनसे पूछें कि how long they take to send the medicine. मैं अभी डॉक्टर साहब ने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, I agree with the source, वो दे दें, हमें नहीं, don't agree according to the source. But does that take about 2 months to give you the medicine? Let's say I'm a patient of hypertension. तो आप मुझे ना करें, मैं मर जाऊंगा, दवाएं देंगे। वो कहते हैं इंसुलिन चाहिए, वो कहते हैं इंसुलिन जी आप खुद ले लें। From where to get the money again? So I'm fully entitled for it. सर इसमें मैं एक और गुजारिश करता हूँ कि लास्ट जो मीटिंग पीएससी की हुई थी, अगेन आई एम सर्कलिंग बैक टू दैट मीटिंग अगेन एंड अगेन, उसके अंदर भी एक डायरेक्शन मिली थी कि हमने फोकल पर्सन्स डिप्यूट करने हैं पार्लियामेंटेरियंस के इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। हमने ऑलरेडी एक फोकल पर्सन 2-3 डिपार्टमेंट के लगाए हुए और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमने सेक्रेटेरिएट के साथ शेयर किए थे। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इफ़ समबडी फील्स प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट इन टाइम, जिस तरह आपने सर फरमाया कि जी आपको 2 महीने लगे, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सर आप अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ना सर, आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको लेके देता हूँ सर। यू आर सर, डोंट आई एम स्टिल आस्किंग फॉर ए लीगल, मेरी एंटाइटलमेंट है राइट फ्रॉम द डे आई बिकेम द मेंबर सर, मेरी लाइफ टाइम है। बट फर्स्ट टाइम माय वाइफ नीडेड इट बिकॉज ही गॉट कोविड में, उसको हो गई ये डायबिटिक हो गई, तो आई नीडेड फॉर दैट। अब उसकी आई हैव नॉट गॉट इट इन 1 year and 3 months 2 months, मुझे उनकी इंसुलिन नहीं दे सके है, तो वे शुड आई गो सर? इंशाल्लाह इसको मैं आपके पास रिपोर्ट करते हैं जी। थैंक यू सेक्रेटरी साहब, इसको इंश्योर करें जो ये ऑडिट। जी सर, मैं इसकी सर समरी बताता जाऊँ सर। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर 2021-22 के पैरे हैं सर। टोटल डीपी टू बी डिस्कस इज 246 नंबर्स सर। पैरा प्रपोज फॉर सेटलमेंट इज 27। और जो सर रिकवरी हमने अफेक्ट की है महकमे ने और हमने वेरीफाई किया, दिस इज 93.2 मिलियन सर। 93.2 मिलियन ऑन द बेसिस ऑफ विच पैराज आर रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट। इसका सर प्री पीएससी मुनक्कद हुई थी 28 फरवरी 2025 को और 1 मार्च 2025 को सर, एज पर योर डायरेक्शन। Perhaps allow me to actually add to what DG Audit has said. Sure. कि इसमें सर ये जो आज आपके सामने हम हाजिर हुए हैं, ये 21-22 के ऑडिट पैराज हैं और ये सर हमें ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जो 37 मिली थी, ये हमें डायरेक्टर जनरल ऑडिट की तरफ से दिसंबर 21 में आई थी और इसके जो प्रपोज ड्राफ्ट पैराज थे सर वो 1642 थे।
सो उनके ऊपर जो 37 कंसर्न एस्टैब्लिशमेंट्स थी उनको हमने वापस भेजा और उसकी SDACs कराई गई और उन SDACs की बेसिस के ऊपर सर हमें रिस्पांस मिला 1274 आउट ऑफ 16, मतलब 1600 में से 1200 के करीब का हमें रिस्पांस मिला और उन 22 SDACs के बाद जो कि फरवरी और जनवरी में की गई हमने सर रिकवर कर लिया अप्रॉक्सीमेटली 834 मिलियन रुपीस। वो जो 1600 पैरास थे उसके अगेंस्ट 834 की रिकवरी हुई। अब जो रिमेनिंग हैं पैरा सर वो 1274 पैरास पीछे जो बच गए जिनको कि ऑडिट ने कहा कि इनके ऊपर अब आप लोगों ने रिकवरी की और 594 पैरास बच गए जो आज आपके सामने आए, लेकिन हमें ये कहा गया कि 274 पैरास को आज हमने इस जो PAC2 है इसके सामने डिस्कस करना है और उसका फर्स्ट पार्ट आज हम 79 पैरास लेके आपके सामने हाजिर हुए। उन 79 पैरास में से भी सर 22 पैरास ऐसा हैं जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हैं जो आपके सामने सबमिट करेंगे, DG ऑडिट भी हमें कंकर करेंगे, वो सारे सेटल होने वाले हैं। रिकवरीज इफेक्ट हो चुकी हैं जहाँ पे डायरेक्शंस देनी थी, जहाँ पर जो भी इफेक्टिव तरीके से DG ऑडिट की कंकरेंस के बाद वो काम कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आप चाहेंगे तो हम पैरा वाइज आपके सामने चलेंगे, वरना हमारे पास सर एक समरी भी मौजूद है कि 22 पैराज आर ऑलरेडी सेटल्ड और 79। नहीं, आई थिंक कि हम टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं करते। पेज 64 से हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है सर। जो पैराज ऑडिट आपने वेरीफाई कर लिए हैं जी सर डिपार्टमेंट के साथ, जी वो सर। आप सेटल कर दें। जी सर। एंड जिसके ऊपर कंटेंशन है आप कंटेस्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट, वो हम कंसिडर करेंगे और वो पैरास कंसिडर करेंगे जिस पे जो अभी तक नहीं हुए डिस्कस। सर जो सबसे पहला पैरा सर वो पेज नंबर 65 से स्टार्ट करेंगे हम, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सर। And for sir, this purpose we have Executive Director Rawalpindi Institute of Cardiology available with us and her Director Finance. Sir. पैरा नंबर सर 19.4.9.1 है सर, अनजस्टिफाइड पेमेंट टू फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स 13 मिलियन। सर जितने भी फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए लाजिम होता है कि सर वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन पास करें जो कि मैंडेटरी है, उसके बाद वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सर 5 डॉक्टर्स थे जो इनके पेरोल पे थे और इन्होंने ये एग्ज़ाम का कोई सबूत नहीं था, लेकिन ये देवर प्रैक्टिसिंग इन द हॉस्पिटल। इस पैरे के बारे में सारे बताता हूँ सर। ये बेसिकली डुप्लीकेट हो गया, यूरोलॉजी का पैरा था, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का, तो ये इधर भी प्रिंट हो गया है सर। तो वो हमने पहले हम डिलीट करने लगे थे, लेकिन हमने आपसे डायरेक्शन लेनी थी कि इफ़ यू अलाउ वी डिलीट दिस फ्रॉम हेयर, लेकिन ये पैरा स्टैंड कर रहा है सर दूसरे। अगर मैं कहूँ कि मैं भी जब ये पैरा पढ़ रहा था तो मुझे भी ये लग रहा था कि ये कहीं और भी मेंशन है इसके अंदर RIUT में। जी सर। तो अगर हम इसको आज इधर ही डील करेंगे तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा? जी सर, वहाँ से नहीं होगा सर। अगर तो ये वेरिफिकेशन करवा देंगे तो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, क्योंकि महकमा तो हेल्थ ही है सर। फाइनेंस का कहेगा डुप्लीकेशन है, एक ही जगह फैसला हो जाएगा तो फिर दोनों तरफ हो जाएगा। होना तो ऐसे चाहिए। जी सर, ऐसे ही होगा। आपने लिखा है ना कि ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर it was observed that foreign qualified doctors were working without obtaining national licensing examination. Is there any provision in law where you don't pass the exam और वो आप कर सकते हैं? जी सर, नहीं सर, ये मैंडेटरी है, इसके करके ही लाइसेंस मिलता है और उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं। जी सेक्रेटरी साहब। सर इसमें जब मैंने अपनी प्री PAC के अंदर इसकी डिस्कशन की थी तो ये पैरा साइमल्टेनियसली RIUT के पास भी बढ़ा हुआ है, तो मैंने अपनी टीम से पूछा कि क्या आपने उनसे जवाब लिया, तो मुझे यहाँ पे बताया गया जी पहले PAC में जाके इसको डिलीट कराया जाएगा, उसके बाद वहाँ से जवाब लिया जाएगा। सो और ये इतना अच्छा मशवरा आपको किसने दिया था? सर इधर ही यहाँ पे बैठे हुए टेबल पे लोगों में से। और अगर आपने ये नहीं पूछा कि अगर वो इधर ही डिस्कस हो जाए फिर क्या करेंगे हम? नहीं सेक्रेटरी साहब, ये तो दिस इज वेरी सिंपल जनरल क्वेश्चन के कैन यू गिव these allowances without passing that national exam? No sir, we कर cannot. सकते हैं। नहीं सर। जनरल पॉलिसी क्या है? Goes to the recovery then. सर लेकिन चूंकि अब ये मैटर सर ऑलरेडी अब यहाँ पे पहले PAC में डिसाइड होगा कि इस पैरा को यहाँ से डिलीट किया जाएगा और देन वी विल बी
जनरली कह रहे हैं कि दे कांट गेट दिस अलाउंसेस व्हाटएवर दे आर ऑन पेड। अगर नहीं कर सकते तो वहां से डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे टेकअप हो जाएगा। सर वो कर लेंगे सर, वो कर लेंगे, लेकिन इस पैरा की हद तक यू से कि दे कांट गेट दिस एलोकेशन ऑफ फंड्स व्हाटएवर इट इज, तो फिर दे विल हैव टू पे। सर इसमें सबमिशन ये है कि आई हैव टू टेक द रिस्पांस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट। मैं अपना यूनिलेटरली इसका डिसीजन नहीं दे सकूंगा जब तक कि ऑडिट के प्रोसेस के तहत RIUT की एडमिनिस्ट्रेशन इसका जवाब देगी। आप कल बुला लें RIUT। जी ठीक है जी, हम इस पैरा को कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इन लेंथ। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 68 है सर, 19.4.14.12 सर, चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान। सर ये सर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ सब स्टैंडर्ड एक्सपायर्ड बैंड मेडिसिन हैं सर, जो कि सर एक्सपायर्ड हो चुकी, रिप्लेसमेंट थी वेंडर की जिम्मेदारी। ये सर जिस टाइम PPS हुई तब तक ये रिप्लेसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन ये अब हमने वेरीफाई कर ली है, ये मेडिसिन रिप्लेस हो गई हैं सर। नहीं, लेकिन ये मेडिसिन जब आई थी, जो ये जिस स्टॉक की बात हो रही थी, जब वो अगर मतलब हुआ है, आप मुझे ये बताएं कि जब उन्होंने ये परचेज की थी, हु वाज द पर्सन रिस्पांसिबल जिसने प्रोवाइड किया? देयर मस्ट बी सम इंस्पेक्शन सिस्टम इन द हॉस्पिटल आल्सो। आप चेक करते होंगे कि ये आई है, इसको रखनी है, ये गलत है, ये आउटडेटेड, व्हाटएवर इट इज, तो व्हाट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन? रिप्लेस तो होनी है, फिर चली जो पकड़ी गई, ऑडिट ना करे तो गुजर गई थी। सर ये जिस टाइम खरीदी थी उस टाइम तो एक्सपायर्ड नहीं थी, लेकिन कैसी कंडीशन होती है, अगर एक्सपायर हो जाएंगी तो वेंडर रिप्लेस करेगा आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम। इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है सेक्रेटरी साहब, आपकी क्लैरिटी की ज़रूरत है। देयर आर टू थिंग्स, वो आगे एक पैरा आया था, वो मैं देख रहा था। देयर इज समथिंग कॉल्ड शेल्फ लाइफ एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एन एक्सपायरी ऑफ द मेडिसिन। उसका डिफरेंस क्या है? MS कार्डियोलॉजी आए हुए हैं? अच्छा सर जो शेल्फ लाइफ होती है वो उसकी है कि उसको यूटिलाइजेशन जो है ना, उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन जो शेल्फ लाइफ होती है उसके मुताबिक होती है कि आप उसको यूटिलाइजेशन उसकी बेस्ट हो सकती है इस शेल्फ लाइफ में। और सर एक्सपायरी होती है कि हम उससे 30% जब उसकी एक्सपायरी रहती है तो उसकी शेल्फ लाइफ में हम कंपनी को लिख देते हैं कि इसको रिप्लेस किया जाए क्योंकि ये नियर एक्सपायरी हो गई है। और शेल्फ लाइफ वो चीज़ है सर जिस पे हम मेडिसिन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर 75% उसकी शेल्फ लाइफ मौजूद है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं एज पर डायरेक्शन ऑफ द वर्दी सेक्रेटरी साहब। यू मीन 30% अगर टाइम उनका रहता है तो दैट इज फिट फॉर? सर हम उनको लिख देते हैं कि आप जो है ना इसको चेंज किया जाए क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ 75% यूटिलाइज हो गई है और 30% रहती है तो इसकी नियर एक्सपायरी है तो इसको फौरन रिप्लेस किया जाए। इस केस में भी सर ऐसे ही था, उन दिनों में कोरोना था, कोरोना की वजह से ये मेडिसिन एक्सपायर हुई, यूटिलाइजेशन इसकी स्लो हुई तो कंपनी ने इसको रिप्लेस भी कर दिया, उसकी डिटेल भी हो गई, फिर वो प्रॉपरली यूटिलाइज भी हो गई सर। ठीक है, और ऑडिट को भी कोई इतराज़ नहीं है? जी सर, वेरीफाई कर लिया सर हमने। ठीक। MS साहब, वैसे मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सेक्रेटरी साहब इज स्लाइटली बेटर देन द अदर कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल्स। थैंक यू सर। हमारा कितना टाइम है हम देते हैं एक ओपन हार्ट बाईपास के लिए किसी पेशेंट को? सर इस वक्त जो सर हमारे पास सर जो अब से 2 साल पहले सर हमारे पास एंजियोग्राफीज के जो रेट था वो सर था हमारे पास 35 एंजियोग्राफीज पर डे, लेकिन सर इस वक्त हो रही है 90 to 100 एंजियोग्राफीज पर डे। और 90 to 100 एंजियोग्राफीज जब होती हैं तो सर उसमें कम से कम 30 to 35 केसेस ऐसे निकल आते हैं डेली बेसिस पे जो कैबेज जिनकी रिकमेंडेशन होती है। हमारे पास सर 5 थिएटर्स हैं और हम उसमें डेली की बुनियाद पर 6 to 8 सर्जरीज करते हैं। कितने सर्जन? 5 ऑपरेशन थिएटर। सर्जन कितने हैं? सर्जन हमारे पास सर 6 हैं सर, तो हम तकरीबन 8 सर्जरी सर हम रोज़ाना कर रहे हैं 5 ऑपरेशन थिएटर्स के साथ। अब उसमें होता है कि सर जो 35 पे हमारी सर्जरी सर जो रोज़ाना निकल रही हैं 5 या 8 उनमें से हो रही हैं तो उसमें सर पेंडिंग केसेस जो ना उनकी तादाद डे बाय डे बढ़ रही है सर। तो अभी तक टोटल जो सर हमारे पास 24-25 में जो हमने रजिस्टर्ड किए हैं पेशेंट को कॉल करके, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया कि इन्होंने प्राइवेट करा लिया, कुछ लोग ऐसे जो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अभी भी सर जो हमारे पास जो पेंडिंग लिस्ट
लिस्ट है सर वो मोर देन 3000 है, मोर देन 3000। तो सर रोज़ाना हमारे पास एक हफ्ते में सर 1 वीक में 5 डेज सर्जरी होती है, तो हम उनको इस वक्त सर तकरीबन कोई 3 to 4 मंथ्स का एज़ पर द क्राइटेरिया ऑफ द पेशेंट हम दे रहे हैं सर। अब उसमें जो हेल्थ, क्योंकि ज़्यादातर लोग सर कोशिश करते हैं कि हम हेल्थ कार्ड पे सर्जरी करवाएं, तो सर तीसरे महीने उसकी बारी आ जाती है रूटीन में। हमने पूरा प्रॉपर एक सर रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाया हुआ है, जैसे पेशेंट आता है जिस सर्जन के नाम होता है उसको उसकी लिस्ट में एंटर कर लेते हैं। उसमें भी सर हमने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, एक रूटीन की, एक टॉप प्रायोरिटी पे, और एक ये कि जो पेशेंट अगर खुदा ना खुद पेइंग पे कराना चाहता है तो सर अगर जो आज भी आया है और वो बहुत क्रिटिकल है तो उसको हम टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में डालते हैं, और उसकी लिस्ट कम है उसमें उसकी बारी जल्दी आ जाती है। अच्छा, ये मुझे बताएंगे सर, जो आपने लास्ट ईयर या एक नया OPD जी सर हमने उसको, जी सर बिल्डिंग स्टार्ट हो गई सर हमारी, बिल्डिंग तो कंप्लीट हो गई है अब तो जी सर, स्टार्ट भी हो गई है सर। 15 नवंबर 2023 में सर वो स्टार्ट हो गई थी सर। ठीक है। अच्छा, जो उसकी SNE कंप्लीट की है आपने? जी सर, SNE सर उसमें हमारे पास सर अब सेक्रेटरी साहब बगाए जैसे ही सर लोग हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, APs हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं सर। ओके जी सर। और जो जूनियर क्लर्क्स हैं उनकी प्रमोशन क्या क्यों नहीं कर रहे आप? जूनियर क्लर्क्स की ओवर टाइम हो गया उनको, उनकी सर उसमें उनकी थोड़ी सी सर उनकी क्वेरीज हैं, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही वो उनकी सोल्यूशन हो जाएगा तो उनकी DPC कर देंगे सर। कब तक कर देंगे पैमेंट? बस इंशाल्लाह सर वो यही प्रोसेस में 15 दिन लग जाएंगे, महीना इंशाल्लाह। चले, थैंक यू। मुझे राणा आफ्ताब साहब, ये MS साहब ये काइंडली बताएंगे हाउ मेनी सैंक्शन्ड पोस्ट आर देयर इन योर हॉस्पिटल? किनकी सर? आपकी जो है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियक सर्जरी, एनेस्थीसिया, पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, मेडिकल ऑफिसर। सर जो टोटल है सर, जो नई बिल्डिंग की SNE है सर, टोटल की? जी सर, टोटल हमारे पास 1700 के करीब है सर। तो कितनी वैकेंट है सर? 600 के करीब सर वैकेंट है। काफी वैकेंट है। If you don't have the proper staff, how can you provide the सर हम facility? उसी पुराने स्टाफ से, सर को भी पता है सर, हम कोशिश तो करते हैं, दोनों बिल्डिंग्स को रन कर रहे हैं सर इंशाल्लाह। Secretary Sahab, just relevant to this question, I belong to Faisalabad. Faisalabad is the second largest city of Punjab. There are number of hospitals. One is Allied Hospital with 2,000 beds. Then you have district headquarters, you have Samnabad Hospital. Then there is Ghulamabad Hospital, Hasib Sheed Hospital. Why have you stopped all cardiac emergency facilities except FIC? क्यों वहाँ क्यों बंद कर दिया? Load of work तो जाएगा ना? They have proper उधर labs भी हैं, सब कुछ है, and they have stopped that everything. सर लेट मी आंसर दिस क्वेश्चंस जो खास तौर पे चेयरमैन ने किया, फिर उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ सर। सबसे पहले तो सर पेंडिंग वेटिंग लिस्ट। अब इसके ऊपर सर एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की एक कमेटी बनी हुई है एट द प्रोविंशियल लेवल, जिसको कि काफ़ी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे लीड करते हैं, और उन्होंने ये डाटा कंपाइल किया हुआ है जिसकी बेसिस के ऊपर दे आर नाउ हैविंग मीटिंग्स विद द रिस्पेक्टिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कि हमने कैसे वेटिंग लिस्ट को रिड्यूस करना है। There are so many things which they are planning right now, जिसमें कि कुछ प्रॉब्ली ऑपरेशन थिएटर्स की फंक्शनैलिटी को बेहतर इम्प्रूव करना, HR के जो कमी है उसको पूरा करना। जब हम HR की कमी की बात करते हैं तो सर तो लास्ट 8 months से आई हैव सेंट रिक्विजिशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1200 पोजीशंस टू पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अगेंस्ट मुझे अभी तक कोई अप्रॉक्सीमेटली 700 के करीब रिकमेंडेशंस मुख्तलिफ फैकल्टीज़ की, मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशंस की, मुख्तलिफ लेवल की जो टीचिंग फैकल्टी की हैं वो मुझे मिल चुकी हैं, जिसमें इफ़ यू आस्क मी के नर्सेज की शॉर्टेज जो Are you talking about the whole Punjab या और सर होल पंजाब? Okay. मैं अभी उसको आपको कॉन्टेक्स्ट इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हम डिपार्टमेंट के लेवल के ऊपर एफर्ट कमी की बात करते हैं तो उसके मैं सबमिट कर रहा हूँ कि हमने सिर्फ 3000 के करीब नर्सेज सर हमें मिली हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से रिकमेंड होके, जो हमने सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के अंदर शेयर की हैं। और इस वक्त मेरा ख्याल है वी हैव विद अस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RIC विद अस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर FIC विद अस, और भी MIC की अगर लीडरशिप है ये भी बैठी होगी तो ये भी बताएंगे कि हमारी पूरी कोशिश होती है। एनेस्थीसिया की शॉर्टेज है सर, मतलब सर्जरीज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट का होना, वो भी हमें मिल गए पब्लिक सर्विस कमीशन से, सीनियर रजिस्ट्रार्स भी मिले हैं, वो भी हमने इक्वली अपोर्शन करके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर भेजे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं।
सो पॉइंट नंबर 1 के जी हम वेटिंग लिस्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट इन MIC के अंदर सर 4 ऑपरेशन थिएटर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इक्विपमेंट नहीं। जो इस साल मैं अपने डेवलपमेंट स्कीम लेके अब जा गया हूँ और मैंने अप्रूवल भी ले ली है चेयरमैन PND से कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम उनका चारों का इक्विपमेंट उसके अंदर फुल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ताकि वो 4 फंक्शन जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर बना हुआ है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वो वहाँ पे फंक्शनल हो जाए। देन सर आपने कहा कि I think मैंने जूनियर क्लर्क्स की बात की थी। Sir, junior clerk, definitely this pertains to something which is related to the hospital administration and only. सर ये जो आपने रान साहब आपने बात की ना कि हमारे लाइट हॉस्पिटल के अंदर कार्डिक वार्ड है या लाइट हॉस्पिटल 2 के अंदर कार्डिक वार्ड है, सर बंद किसी ने नहीं किया। मैं आपको इनऑपरेटिव होने की वजह बताता हूँ सर। मेयो हॉस्पिटल के अंदर पूरा एक कार्डिक वार्ड है, वहाँ पे एक अदद नहीं 2-3 प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, लेकिन सर जो माइंड सेट है ना एक किसी कार्डिक पेशेंट का या उस बंदे का, वो कहता है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर मैंने वॉक इन करना है। अच्छी बात है। मैं आपको मिसाल देता हूँ सर कि मैं पिछले दिनों एक हॉस्पिटल जो कि लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान एक टीचिंग हॉस्पिटल है शाहदरा में, वहाँ पे गया तो वहाँ पे PIC का फिल्टर क्लिनिक भी बना हुआ है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का फिल्टर क्लिनिक है, बट यू विल नेवर सी अ पेशेंट बीइंग एग्जामिन्ड देयर और विजिटिंग फॉर कार्डिक इशू, बिकॉज जिसने भी सर ट्रैवल करना है ना उस रोड के ऊपर, उसने सीधा PIC जाके लैंड करना है। मेरी गुजारिश है कि मैं आपको सब ये एश्योरेंस देता हूँ कि हमारी HR भी वहाँ पे हॉस्पिटल्स में कार्डिक वार्ड अगर बने हुए हैं जो कि हैं वहाँ पे अवेलेबल है। अगर खुदा ना खासा कोई बंदा वहाँ पे जाएगा, लाइक सर लाइट जो पुराना DHQ है वहाँ पे कैथ लैब भी मौजूद है। और सर मैं आपको बताता हूँ ना सर, उसकी गुजारिश ये कि वो ली गई थी फिलैंथ्रोपी से लगाई गई थी, उसका SLA ख़त्म हो गया, वो खर्चा भी मैं बर्दाश्त करने वाला हूँ उसको चलाने के लिए सर। लेकिन अब आपने बात की कि मशीन नहीं है, तो सर इस दफ़ा का जो सेक्टोरल प्लान हमने बनाया, वी आर गोइंग टू प्रोक्योर 28 कैथ लैब्स मशीन इन नेक्स्ट ईयर फॉर ऑल कार्डिक इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है जो 10 साल से पुरानी हो गई हैं, या जिस तरह FIC ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि उनके पेशेंट लोड के ज़्यादा होने की वजह से उनको मज़ीद 2 कैथ लैब्स चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मेरा पॉइंट ये सर कि हम ये नहीं है कि वी आर नॉट कीपिंग टैप ऑन दीज इश्यूज, हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो इशू है ना सर कि हॉस्पिटल में हमने कोई बंद कर दिया है, बंद करने वाली बात नहीं है। बंद की बात नहीं, इशू नहीं है। आप देखें कि जैसे अब आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू आउटसोर्स कर रहे हैं आप, ठीक है, वो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी। इशू ये है कि इमरजेंसी सर्विसेज में अगर वहाँ जाएं दे शुड बी गिवन। एक पेशेंट को इमरजेंसी में आप कहते हैं कि इसकी एंजियोग्राफी होनी है, एवरीबडी रशेस टू दी FIC, वाई वो प्रॉपर हॉस्पिटल है, लाइट हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है। आपकी ये जो गुलामबाद में हॉस्पिटल, somebody was calling me just right now कि उनकी जो एक मशीन है विच इज़ रिलेटेड टू दी गायनी वार्ड वो बंद पड़ी है। अब आप देखें कि दे आर डूइंग वेरी गुड FIC वाले, आई डोंट से, मतलब देयर इज जस्ट वन प्रॉपर सर्जन देयर, हाउ मेनी ही कैन ऑपरेट दैट? Just one surgeon, and one is the pediatric surgeon. What is his capacity to work under the international law and according to the medical science? वो कितने ऑपरेशन करेगा? हर आदमी होता है जिसकी, आप कह रहे हैं 4 माह, वो 4 साल का टाइम दे रहे हैं। Somebody must be representing FIC here, मुझे बताएं कितनी देर का टाइम दे रहे हैं वो। सर I'll come to that on my। ये मेरे नोटिस में भी है, राणा साहब इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि 4 साल का टाइम देते हैं। देयर इज ओनली वन सर्जन एंड फैसलाबाद इज़ अ डिस्ट्रिक्ट जिसकी अगर आप नेशनल असम्बली की सीट्स देख लें तो वो प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा है पंजाब में। तो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट problem is going to be the oncology department, then you are going to have the gastro problems, all the because of the junk food and things, all that. आपको चाहिए we should consider right now, this is high time we should proceed to such things. आप देखें oncology का आपके पास क्या है, you don't have a proper burn center in Faisalabad, you don't have any proper उसका treatment के लिए नहीं है, everybody rushes to let's say Shaukat Khana because they get the proper facility, because there is a system running around there. तो मेरी गुजारिश है कि वी शुड मतलब थोड़ा सा आगे सोच लें, बेहतर है।
अलाउ मी हम्बली सबमिट करूंगा ऑन्कोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फरमाया। अब ये सर हम अगर एक एक चीज़ को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो वो काफ़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। अलाइड हॉस्पिटल के अंदर सर ऑन्कोलॉजी का 60 बेड का पूरा यूनिट है विद लीनियर एक्सेलरेटर, कोबाल्ट की मशीन लगी हुई है विद रेडियोलॉजी। ये चीज़ वहाँ पे मुझे जब मैं वहाँ पे गया विजिट किया तो मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने भी यही बात की, तो मैं आई टुक देम अलॉन्ग विद मी, और वहाँ पे मैंने जब दिखाया तो सर हमने उसको 60 बेड से एक्सपेंड करके 100 बेड का केमियोथेरेपी बेस्ड मतलब जो कैंसर क्लिनिक बना दिया है। और सिमिलरली कोबाल्ट की मशीन वहाँ पे पुरानी थी, अगेन सर उसका PC1 बन गया हुआ है, हम उसके नए लीनियर एक्सेलरेटर भी वहाँ पे प्रोक्योर कर रहे हैं। सो मेरी सबमिशन ये है कि अब आपने कैंसर की बात की है सर, कैंसर के ऊपर डेरा गाजी खान निश्तर के अंदर सर हमारा पेट स्कैन है, पेट स्कैन लग रहा है हमारा सर। कैंसर का हम डेरा गाजी खान के अंदर नया हॉस्पिटल प्रपोज कर रहे हैं सर 100 बेड का सर, क्योंकि वहाँ पे इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। सिमिलरली सर हमारा कैंसर का नया यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है सर। सो ऑन्कोलॉजी और कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर वी आर स्प्रेडिंग और बहुत सारा काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन सर इसमें क्वालिफाइड HR का होना इज़ वेरी क्रिटिकल सर, कि बिल्डिंग को हम वहाँ पे ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर आप अलाउ करेंगे नेक्स्ट टाइम मैं आप जब फैसलाबाद आप आता हूँ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे साथ चलें, आप ऑन्कोलॉजी वार्ड को एक दफ़ा विजिट कर लीजिएगा जी। It is I was born there, brought up there. Sir. मैं जनाब है ना कोई HSN दा पढ़े हैं, मैं तो माड़े जे टाटा स्कूल दा पढ़े हैं, तो आई एम ए जस्ट लेमैन। मेरा इशू ये है कि आप अगर हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को ये फैसिलिटी में नहीं प्रोवाइड कर सकते तो व्हाट आर वी डूइंग? आप देखें कि गैस्ट्रो का कितना बड़ा इशू आ रहा है लोगों को, ये जो आपकी डेथ रेट ऑफ ये देखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हो रही हैं आपके, व्हाई पीपल आर रनिंग आउट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर द रीजंस? व्हाई डोंट यू गिव देम प्रॉपर सैलरी? एक डॉक्टर को आप घर दें, अच्छा उसको कन्वेंस दें, उसकी बच्चों की एजुकेशन दे, स्टे देयर। जब आप नहीं करते हैं दे गो मेक मनी इन डॉलर्स इन अमेरिका एंड ऑल दैट, गो बैक। आप जितना ब्रेन ड्रेन अब हुआ है 2-3 साल में, नेवर बिफोर दैट। आप देखें कि आपको डॉक्टर मिल नहीं रहे। इज इट ए फूड? देखा कितनी अजीब बात है कि पूरे फैसलाबाद में इतना बड़ा 200 मतलब 10-20 ज़िले को डील करता है, एक हार्ट सर्जन है, क्या उसकी कैपेसिटी, हाउ मैनी कैन ही ऑपरेट? आप देखें मैं ले आया हूँ रिकॉर्ड था, एवरीथिंग आई डिटेल यू। आपकी पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी नहीं है, मशीन। साहब मैं राणा साहब की बात को थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। मेरा भी और राणा साहब का और पूरी कमेटी का जो कंसर्न है रिगार्डिंग पोस्ट विच आर वेकेंट, हमने काफ़ी पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमने एडिशनल चार्ज पे लोगों को दिया हुआ है। काफ़ी अब जो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, ऑब्वियसली वहाँ पर जो उसकी SNE के मुताबिक सर्जन्स की कैपेसिटी 5-10 होगी, बट देयर इज ओनली 1। सो ये कंसर्न ज़रूर जायज़ है राणा साहब का बड़ा, कि पर्टिनेंट भी है बिकॉज यू आर हेयर, कि हमें SNE को तकरीबन जो सैंक्शन पोजीशंस हैं उसके लिए आप गवर्नमेंट से ज़रूर बात करें, और हमें इससे और ये हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, स्टेट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हमें नज़र आ रहा है इन केस आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम डिपार्टमेंट्स आपका जो है मेहनत कर रहा होगा, बट वो जो लेवल हम एक्सपेक्ट करते हैं हेल्थ केयर का फ्रॉम यू एंड योर डिपार्टमेंट, उसमें थोड़ी सी कमियां हैं। अगर हम, और वो कमियां सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स नहीं है या हमारे पास अच्छी टीम नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं हैं, बिल्कुल हैं, उनको मौका दें, SNE के मुताबिक लोगों को हायर करें, उनको जब तक हायरिंग नहीं होगी ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, ये मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आई मे बी रॉन्ग बट वी एक्सपेक्ट बेटर देन व्हाट वी आर सीइंग। ये जो पिछला पैरा है दैट इज सेटल्ड कार्डियोलॉजी मुल्तान का। द नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। पेज नंबर 70 है सर, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर।
इसमें सर ये है नॉन रिकवरी ऑफ क्वालिफिकेशन अलाउंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ हैविंग PhD MPhil। सर फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक लेटर था 19/11/2016 से क्वालिफिकेशन अलाउंस डिसकंटिन्यू कर दिया था इन्होंने, वो उन लोगों के लिए जो कि PhD या MPhil की बेसिस पे भर्ती होते हैं सर। तो इस मद में सर जब ऑडिट चेक किया तो 3.057 मिलियन की पेमेंट एक्स्ट्रा हुई थी इन लोगों को जिनको पेमेंट नहीं हो सकती, एलिजिबल नहीं थे। लेटेस्ट पोजीशन सर ये है कि 2.77 मिलियन की रिकवरी हो चुकी है जो ऑडिट ने वेरीफाई कर ली है, और तकरीबन 2 मिलियन की रिकवरी इज स्टिल पेंडिंग। 2 लाख की रिकवरी पेंडिंग है सर, बाकी रिकवरी हो चुकी है। एक डॉक्टर है 2 लाख की तो हो ही जाएगी। रिकवरी कर ले इसकी देन सेटल इट। इसमें भी सर हुआ ये है कि 2018 के अंदर फाइनेंस ने एक इंस्ट्रक्शन इशू की कि PhD और MPhil जो है वो और जो अलाउंस है वो अक्रॉस द बोर्ड हर बंदे को देना है। वो फिर 2018 और 2016 का जो गैप है उसका जो रिकवरी है वो 2 लाख बच गई है सर। वो अब UHS में मोस्ट प्रॉब्ली सर अगले हम मीटिंग से जब भी होगा हम लेकर आएंगे सर। ऐसे जी 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 सर नेक्स्ट पेज 74 है सर, पैरा नंबर 9.4.2.76। सर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं FIC के, FIC फैसलाबाद का पैरा सर ये इन्होंने सर ये डबल अलाउंस ड्रॉ किया सर, डबल शेयर ड्रॉ किया, 1 एज कंसल्टेंट सर्जन एंड 1 एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। टोटल 6,50,000 की सर रिकवरी इनके अगेंस्ट स्टैंडिंग है। जाहिर है कि रिकवरी जी है ना जी, ये सिर्फ डॉक्टर से ना पाओ, दे आर सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि फैसलाबाद में आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, कमिश्नर वाज हैविंग द चार्ज ऑफ चेयरमैन बोर्ड ऑल्सो, ही वाज हैविंग द चार्ज ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। वो लेके बोर्ड के हॉस्पिटल वो स्कूल चेक करने होते थे, आप उन पे पैरा नहीं बनाएंगे। मैं भी ये आपको कह रहा हूँ ऑडिट वाले, उन पे आपने नहीं कभी रिकवरी डाली। डॉक्टर बेचारे ने अगर उतो ले लिया ना 20 रुपये ज़्यादा थे उसे वो मगर पै गए हो। मतलब ये देखें कि दिस हॉस्पिटल वाज एस्टैब्लिश्ड वे बैक 2007, वी स्टार्टेड इट एज ए मेंबर, हमने ये चौधरी परवेज़ अलाई साहब ने किया था। अब आप देखें कि सिंस देन इनकी जो मेरे ख्याल है मेरी जो 5 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है वहाँ पर पेशेंट्स की। दे आर डूइंग वेरी गुड ऑल्सो, आई डोंट से, मगर इनकी कैपेसिटी है, ये कोई जाता है एक जाता है जाके सस्पेंड करके आ जाता है, ये तो काम नहीं कर रहे। बिकॉज वाई आप क्यों इनको जस्ट मेक देम द टारगेट, लेट देम वर्क, गिव देम ए फ्री एनवायरनमेंट, प्रोवाइड मेडिसिन। अगर मेडिसिन आपने 4 बिलियन देना है तो डॉक्टर ने तो नहीं देना, ये तो आपने देना है डिपार्टमेंट, आप उनको दें। अगर वो फिर मेडिसिन अवेलेबल ना हो, सबसे पहले सेक्रेटरी साहब फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज इनकी जो HR जो है ना काम मेरा ख्याल है हमारे फैसलाबाद में इन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट देयर आर 51% vacant seats, and in cardiac surgery they are 83% vacant, 83%, and the anesthesia is about 92% vacant. Then pediatrics में कोई 75% vacant है। This is all I get it through, मतलब ये तो नहीं देते हैं डिपार्टमेंट वाले, this is on साढ़े क्लर्क वाकिफ होंगे हैं और भी जस्ट गेट फ्रॉम दैट कि यार 10 तो सही है कि अब इन चीज़ों के बाद आप मुझे बताएं कि जो मेडिकल इक्विपमेंट है आपका उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स से अपग्रेडेशन सकते हैं, जो ग्राफी का जो भी है, रेवेन्यू कॉस्ट, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। मगर आप जैसे कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, आई एग्री दे आर डूइंग गुड, बट आर दे वर्किंग विद फुल कैपेसिटी? वो तब कर सकते हैं फुल कैपेसिटी उनके पास डॉक्टर्स भी पूरे हों, सर्जरीज भी हों, एंजियोप्लास्टी भी हो, स्टेंटिंग भी, जो भी है। मगर बिकॉज इफ दे डोंट हैव द प्रॉपर स्टाफ, हाउ कैन आई डू इट? I have not met that doctor, gentleman doctor, the heart surgeon. I would wish to see him. अगर मेरा बस हो तो उसको मैं यहाँ सलूट करता हूँ। उसको अकेले ने 500 ऑपरेशन किया साल में, तो वेयर इज ही मस्ट बी रिवॉर्डेड। उसको भी तमगा इम्तियाज दे दें, ये फिल्मों वालों को देना, उसको दें, उसको इनकरेज करें, वरना वो भी चले जाएगा किस दिन। दिस डॉक्टर्स नीड टू बी इनकरेज ऑल्सो, प्रोवाइड देम ए हाउस, प्रोवाइड देम फैसिलिटी। थोड़ा एक मजिस्ट्रेट जाता जाके दबाई पट दिंदा, तो सो दे आर वेरी, डॉक्टर इज क्वाइट डिफिकल्ट टू बी डॉक्टर। वो बन गए हैं, फिर वो आपके सेक्शन अफसर के पास घूमते फिरते रहते हैं, यार साडा करना ही साडा। आपके आधे डॉक्टर जो हैं इनको भी लेक्चर देता हूँ। ये इनके घरों में AC जो लगे हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने दिए हुए हैं, गाड़ियाँ
की उन्होंने इनको लेके दी हुई हैं, वो क्या कहते हैं बैंक जो लोन टाइप, तो इसमें वी नीड ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द बेटर पीपल। आपको मैंने आर्टिकल 38 दिया है, ये हमें नहीं दवाई मिलती है, उन्होंने क्या देनी है? तो इसलिए मेरा ये है कि आप थोड़ा सा रैशनल देखें, इनको अकोमोडेट करें, इनको ऑल्सो ट्रीट दम एज ह्यूमन बींग्स। अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो कोई नहीं है, हम तो हमारा काम भी लगे हैं रेस दिस इन असेंबली। और मज़ेदारी की बात है, ये ऑन द फ्लोर ऑफ द मीटिंग कह रहा हूँ कि आज तक अभी चेयरमैन साहब ने मीटिंग रखी है, जो इधर से डायरेक्शंस दी हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने चेक करनी है। कंप्लायंस बोर्ड का कंप्लायंस बोर्ड दैट इज़ वेरी पुअर ऑल्सो। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, यू बीइंग ए सिविल सर्वेंट आपने कर रहे हैं, इसका कोई हमारे शहर का सोच लें। वी कांट डू एनीथिंग, अनफॉर्चुनेटली वी आर 16 मेंबर्स ऑफ द पीटीआई फ्रॉम देयर, दे डोंट इवन बॉदर। ये नहीं है, अपोजिशन ही कट्टी सारी ज़िंदगी, मगर एक दफ़ा वजीर बने सी भी थोड़ी देर 2.5 साल ली। मगर ये है कि आप थोड़ा सा ये देखें कि आर बी डूइंग जस्टिस टू द सिटी। आप हमारे से पूछ लें, लेट्स से यू आर ए सेक्रेटरी, आप मेंबर्स को बुला के पूछे व्हाट आर द इश्यूज, आप हमें रिटर्न प्रपोजल ले लें, आप वो भी नहीं पूछते हैं। ये तो जो डॉक्टर तो घबराते हैं साढ़ा ना लेके कि जी ये पता नहीं इन्होंने मिलिया थे ना, तो मरीज देख रहे थे मर जाएंगे। राणा साहब पैरा पे आ जाएं। करो सर, आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बहुत अच्छी थी, सेक्रेटरी साहब ने नोट भी फरमा लिए हैं। और ऑडिट ये जो अलाउंसेस हैं, ये मेरे ख्याल में ये काफ़ी हॉस्पिटल्स को मिल रहे हैं। सर इन अलाउंसेस पे एतराज़ नहीं है, एतराज़ ये है कि एक ही शख्स 2 किस्म के अलाउंसेस ले रहा है 2 मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में। इनके बोर्ड ने इनको ऑथराइज किया हुआ सर? ये नहीं सर, 2009 में सर ये जो हमारी शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनी थी 2009 में। ये शेड है? हाँ जी, आप बताएं सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सर सरफराज हूँ, डायरेक्टर फाइनेंस फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। इसमें सर गुजारिश है कि सर हमारा ये इंस्टीट्यूट 2007 में सर इस्टेब्लिश हुआ, और फिर सब्सिक्वेंटली सर 2009 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम द फाइनेंस और हेल्थ डिपार्टमेंट, उसमें सर ये सारा मामला थ्रेडबेयर सर डिस्कशन हुआ। वहाँ पे उन्होंने सर एक कमेटी बनाई, और कमेटी की रिकमेंडेशन को फिर बाद में सब्सिक्वेंटली सर बोर्ड ने अप्रूव किया। उसमें सर उन्होंने जो एडमिन के स्टाफ था, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एमएस वगैरह थे, उनका सर बाकायदा स्पेशली सर इस शेयर को उसमें उसने अप्रूव किया। अब सर मैं इसको 2 स्ट्रीम होती हैं सर हमारे, जब ये हमारे यूज़र चार्जेस से सर ये हमारी रिसीट जनरेट होती है। एक सर वो है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि सर ये एज़ पर पंजाब मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन एक्ट टीचिंग कैडर से होता है, या तो वो सर्जन होता है या सर वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। इस वाले पैरे में सर एक पोर्शन सर कार्डियक सर्जन का जो हमारे अंजम जलाल साहब थे, और एक सर हामिद सईद साहब जो अभी भी रिसेंट आपके सामने सर रिसीव रखते हैं। तो सर इन 2 का पैरा था। अब सर ये हुआ कि उस बोर्ड की अप्रूवल के बाद हमने सर उसको पे किया। अब इन्होंने एक तो सर अपना शेयर लिया जो एज ए कंसल्टेंट इन्होंने जो सर पेशेंट को सर्विसेज दी और उसके रिजल्ट में दिया। दूसरा सर इनका शेयर जो है एज ए एडमिन, क्योंकि सर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी सर परफॉर्म कर रहे हैं। अब सर होता ये है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर सर ये काम कर रहे हैं, तो ये शाम को लेट भी बैठ के करेंगे, संडे को भी आएंगे, जो ज़रूरी काम होते हैं, सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को सर ये लीड कर रहे होते हैं। और सर इसको मतलब है सर उस वक्त 2009 की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने सर इसको अप्रूव किया, फिर सब्सिक्वेंटली सर 2023 में दोबारा सर हमने रिव्यू के लिए रखा, और फिर बोर्ड ने सर इसको अप्रूव किया। और सर सबसे अहम बात सर ये है कि 2023 में सर जनवरी 2023 में डिपार्टमेंट ने सर ये जो UHI का जो इनिशिएटिव है उसके तहत सर एक पूरी इसकी पॉलिसी सर वज़ा की। उसमें सर उन्होंने उस पॉलिसी में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंक्लूडिंग MS, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, AMSs और DMSs को उन्होंने परमिट किया जी कि वो ये ले सकते हैं। तो और ये सारी चीज़ हमने जनाब एक मिनट ठहर जो तुसी ते लंबी कहानी शुरू कर ली है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको इंटरेस्ट किया है, अप्रूव किया है, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इनको क्यों पूछ रहे हैं जिन्होंने इसको ऑथराइज किया है? तो इसको मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब, आई वुड से कि ये वी आर वेस्टिंग टाइम, या वी डॉक्टर्स दे मगरफे पे देन फाइनेंस। डू यू हैव टू से समथिंग? सर ये जो शेयर है ना, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। ये लिखा हुआ है डॉक्टर्स शेयर है, और कोई शेयर का कैटेगरी है नहीं कि जिसमें से डबल बेनिफिट लिया जा सके। एक ही शेयर लेना चाहिए, बेनिफिट तो एक ही होता है। लेकिन देयर इज़ नो लॉस टू द गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने अपने रिप्लाई में कहा है कि देयर इज़ नो लॉस टू द गवर्नमेंट। नहीं सर, गवर्नमेंट से लॉस की बात नहीं, डबल बेनिफिट। मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे यू मेक एन अथॉरिटी बाय द असेंबली बन जाती है ना, आप उसको पास कर देते हैं, दे मेक देयर ओन बाय लॉज, राइट?
Can we challenge their bylaws? सर ये फाइनेंशियल शेयर जो है ये समरी पे approved है। सर फाइनेंशियली मैं आपको रूल्स की बता रहा हूँ। व्हेन अथॉरिटी इज क्रिएटेड उसके बाद उसके रूल्स फ्रेम करते हैं कि नहीं, आप अलहदा होते हैं, असेंबली नहीं करती है वो। कि बाईलाज में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं कि ये फाइनेंशियल मैटर नहीं, फाइनेंशियल मैटर्स व्हेन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज डिसाइड वन थिंग कि जी हम ये इसका शेयर देंगे, आर दे इसमें कोई लीगल फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन, इज देयर एनी स्टॉप ऑन दैट? सर है ना, इसमें वो जरा बता दें तीन मुझे। कैटेगरीज लगी हुई हैं सर, ये नहीं सर वो मुझे बताएं रूल पढ़ के फाइनेंस का कि वो तो जिसमें आप ये बताएंगे जिसके तहत आपने दिया वो अब पढ़ ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं आप उसकी प्रोविजन बताएं किसके तहत आपने दिया है। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पर ये दे नहीं सकते, मैं आपको कह रहा हूँ फाइनेंस में। सर हम तो ये कह रहे हैं कि है ही नहीं, ये किस नहीं आप कोई लिखा होगा ना कि आपने एक उनके शेयर तो लिखा ना उन्होंने बोर्ड ने बना लिया, जैसे दे आर डिफरेंट अथॉरिटीज, कोई सेमी ऑटोनमस है, कोई ऑटोनमस है, जिस आप ये है कि आप मुझे कोई ऐसा फाइनेंशियल रीज़न कोट कर दें कि जिसमें दे कैन नॉट डू दिस। कोई प्रोविजन फाइनेंशियल होगी तो उसके तहत देंगे, है ही सर नहीं कोई नहीं है, विशेस फॉर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइट, ये नहीं, आप मुझे लीगली बताएं कि फाइनेंशियल क्या उसमें है। सर वो जिस शेयर की वो बात कर रहे हैं उस फार्मूले के अंदर इनका दूसरा शेयर ही नहीं है। चलें ना जी, जिस फार्मूले की बात करेंगे यहाँ फार्मूला लिखा हुआ ना सर, उस फार्मूले से बाहर तो नहीं जा सकते ना किसी भी रूल के तहत। लेकिन उसी रूल के अंदर अगर उसी रूल में उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर ने उसको ऑथराइज किया हुआ है इस शेयर को, बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास कोई प्रोविजन नहीं ऑथराइज करने के फाइनेंशियल। जी सर। सेक्रेटरी साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर वैसे तो फुल पावर्स होती हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो हॉस्पिटल्स के ऑटोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस केस के अंदर डेफिनेटली जब फुल पावर्स हम कहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो लीगल जो फाइनेंशियल जो स्टैंडर्ड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ले डाउन किए हैं उससे हम बियॉन्ड नहीं जा सकते। सो इस केस के अंदर सर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एडवाइस सी की हुई है फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्च में लेटर लिखा था, तो वी डिड नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम दैम एज येट। तो जब वो हमें इसके मुताबिक जवाब देते हैं, बिकॉज मेरी एस्टिमेशन में हमें अल्टीमेटली फाइनेंस से ही सर गाइडलाइन लेनी पड़ेगी इस 6 लाख के। सेक्रेटरी साहब आपने खुद कहा है दी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैव ऑल दी अथॉरिटी टू मेक रूल्स, हम कर सकते हैं। सर मेरी अगर आप हम्बल सबमिशन ये है कि वो अथॉरिटी इस तरह तो नहीं वाइडली एक्सरसाइज कर सकते जो फाइनेंशियल रूल्स हैं। अब ये तो नहीं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बैठ के सडनली डिसाइड कर सकता है कि इस अमाउंट को वो जी सर वही करेंगे, वही कर रहे हैं, इसलिए एडवाइस सी की हुई है। अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसके मुताबिक एडवाइस कर देता है कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने ये जो डिसीजन लिया ये लीगली राइट है तो ओके सर, अदरवाइज हम वापस फाइनेंस के पास चले जाएंगे। ये जो ऐसे एफसी वाले बैठे हुए थे इनका नाम क्या था, गाड़ी वाले बैठे हैं, सरफराज साहब जो आपने एक आखिरी बात फरमाई थी वो ज़रा दोबारा रिपीट करेंगे? जी सर, मैंने आखिरी बात सर ये की थी कि ये जो अभी यूनिवर्सल हेल्थ जो इंश्योरेंस पॉलिसी आई है UHI जिसको हम कहते हैं, उसके तहत भी सर जो पॉलिसी बनी है शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें भी सर जो एडमंड ब्लॉक है उसकी सर पूरी उन्होंने उसमें परसेंटेज रखी हुई है जो कि उसमें से उसको परमिसिबल है सर। तो इसलिए सर मेरे ख्याल में जब एक सेम सर पॉलिसी डिपार्टमेंट की तरफ से आई है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट फोरम, उसमें भी सर एडमंड ब्लॉक को या ED को या MS को सर परमिशन दी गई है, तो मेरा ख्याल में उसी लाइन को अगर देखा जाए तो ये सर सेटल हो सकता है। और ये जो आप फरमा रहे हैं जो पॉलिसी बनी है, ये पॉलिसी कब बनी है? ये सर इसमें सर अभी रिसेंटली सर अनाउंस हुई है सर। इसको इस पावर को हम रेट्रोस्पेक्टिवली ले सकते हैं फाइनेंस से तो ना ही करनी है? सर बिल्कुल नहीं, अगर इन्होंने ये पॉलिसी पर आमद किया है तो फिर हमें क्यों लेटर लिख दिया है? इनके कॉन्फिडेंस बाद में पॉलिसी बनी होगी ना? नहीं सर, लेटर तो अभी लिखा है ना। तो आपने जवाब दे दें, वो मैं जवाब देने तक इसको हम वो कर रहे हैं। सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये अगर ये आप इसको प्रेसिडेंस बना लेना तो इसमें काफ़ी लोग हैं जो मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में काम कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 हॉस्पिटल्स को भी एट ए टाइम लोग को आफ्टर कर रहे हैं, वो तो फिर वो भी ड्रॉ नहीं कर रहे सर, वो भी सिंगली ड्रॉ कर रहे हैं सर। ठीक है जी, इसको आप फाइनेंस क्लैरिफाई करके बताएंगे, इसको हम डेफर कर रहे हैं। सर हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है ना वो ये है कि ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जितना अपना अलाउंसेस देता है उसी तरह लेगा। हाँ बिल्कुल, तो उसी को मद्देनजर रख के सर हम जवाब देंगे।
नेक्स्ट है सर पेज नंबर 78 है सर FIC फैसलाबाद रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ इरेगुलर पेमेंट टू नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। सर ये डॉक्टर्स ने नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी लिया और प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो ये अलाउड नहीं है। ये किस साल का जी, ज़रा ये बताएंगे? सर ये 19-20 का दैट वाज ए कोरोना डेट से, एंड आई थिंक उन्होंने जो नहीं किया, ही मस्ट हैव सबमिटेड सम सॉर्ट ऑफ एफिडेविट आल्सो। सर वी हैव प्रूफ्स कि वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी ले रहे ये डिपार्टमेंट बताएगा ना, ये तो FIC वाले। जी जी सर इजाज़त। जी सर इसमें हमारे सर दो डॉक्टर ऑडिट ने पॉइंट आउट किए थे, एक डॉक्टर राय हयात साहब थे सर और एक डॉक्टर शफक थी जी, WMO थी जी। जो डॉक्टर शफक है सर, उन्होंने अपनी रिकवरी अमाउंटिंग टू ₹2,73,336 रुपये सर डिपॉजिट करवा दी है सर। हमने उसको DO से वेरीफाई भी करवा दिया है और सर अभी हम इसको दोबारा ऑडिट को उसको वेरीफाई भी करवा देते हैं। सर सेकंड वन जो है डॉक्टर राय हयात साहब सर, ही वाज जिस वक्त सर ये पैरा बना, ये उस वक्त सर SMO थे और सर जब सर मई 2017 में सर उन्होंने अपना NPA सर स्टॉप करवा दिया, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस सर शुरू कर ली। फिर सर उसके बाद सर वो लेते रहे, लेकिन सर अक्टूबर 2019 में जब सर कोविड का सर सीजन शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी सर प्रैक्टिस बंद कर दी और सर उस कोविड के दौरान सर फिर जब ये 2020-21 का सर पैरा है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो लिहाजा उनको हमने सर NPA दे दिया। फिर सर 2022 में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस रीस्टार्ट कर ली सर, और रीस्टार्ट जब की तो फिर हमने उनका NPA फिर बंद कर दिया और ये सारे सर हमारे उसके पेरोल से एविडेंस सर अवेलेबल है और उनकी सर एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है। और तो इसमें सर आप वेरीफाई करें। जी सर ठीक, वेरीफाई करवा दें हमें। वेरीफाई करें, अगर जिस तरह कह रहे हैं अगर वेरीफाइड है तो उसको सेटल क्योंकि सर हमने तो देखा कि डॉक्टर्स ने एफिडेविट दिए हुए थे कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बट दे वर वर्किंग अगेंस्ट देयर एफिडेविट्स, तो उसके प्रूफ भी लगे हुए हैं। तो जिसमें आप कहते हैं दैट इज द केस एवरीवेयर, वी सी इट एवरीवेयर, बट इसके कोई परफॉर्मेंस ऑडिट आपने DG साहब इसमें जो इन्होंने फाइनेंस वाले ने बताया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं, यू शुड वेरीफाई कि यू हैव टू बिलीव सम थिंग्स ऑन समबडी। हम भी यहाँ के ओथ लेते हैं असेंबली में, वी वर्क अंडर दी ओथ। तो ये है कि अगर एक बंदा अपना एफिडेविट दे रहा है तो अल्लाह उसको देगा, गलत दे रहा है। अगर इन्होंने कहा है कि व्हेन ही वाज, जब कोविड आया तो ही वाज नॉट प्रैक्टिसिंग, उसे कोई भी नहीं कर रहा था। जब उसने जब स्टार्ट किया उसने फिर बंद कर दिया। दिस इज देयर इज रेलेवेंसी इन हिज रिप्लाई आल्सो। ठीक है, बाकी फिजिकल वेरिफिकेशन की वेरिफिकेशन करके कर ले सर। राइट, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर ये पेज नंबर 81 पे है सर, पैरा नंबर 19.4.5.29 रिकवरी इन अकाउंट ऑफ शॉर्ट शेल्फ लाइफ परचेज ऑफ लैब किट्स। सब लैब किट्स परचेज की थी जो रिक्वायर्ड शेल्फ लाइफ थी उससे कम लाइफ थी उनकी लाइफ, जिसकी वजह से रिकवरी 1% के हिसाब से पड़ती थी 1.9 मिलियन। लेकिन सर अभी तक इस ऑन अकाउंट ऑफ लैब किट्स किसी किस्म की रिकवरी नहीं हुई सर। जी और डिपार्टमेंट इसमें सर मैं ऐड करता जाऊँ कि इन्होंने कहा, इनका जवाब आया था कि मेडिसिन पे ये लागू होता है, लेकिन जो परचेज ऑर्डर दिया गया था सर उसमें भी शिक लिखी हुई है कि अगर आपकी लैब किट्स की लाइफ कम हुई तो हम 1% रिकवरी डालेंगे। यहाँ कोई टेक्निकल आदमी बैठा है फैसलाबाद इंस्टीट्यूट FIC से? सर ये जब किट्स परचेज़ की गई थी, इनकी जो रूल्स उस वक्त अवेलेबल थे उसमें यह था कि ये इन विट्रो थे, ये आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी यूज़ होती हैं, आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी के ब्लड सैंपल पे यूज़ होती हैं किट्स, ये ह्यूमन बॉडी के साथ डायरेक्ट इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता सर। उस रूल के हिसाब से इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है सर। लेकिन सर इनकी जो शेल्फ लाइफ थी ये उस वक्त तक एक्सपायर नहीं थी और सारी की सारी यूज़ हुई हैं। दूसरा सर जो 1920 का वो वाला पीरियड था जब कोविड का टाइम था, उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनी सप्लाई नहीं कर रही थी या डिले सप्लाई थी, तो हमें सर कुछ चीज़ें उस टाइम में वो भी गुजरा जिसमें सर ये लेनी पड़ी हमें। तो मैंने तो ये चीज़ें थी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये क्योंकि हम स्टॉक में ये पड़ी थी, हमें यूज़ करनी थी, हमने इसको यूज़ किया, ये जिसमें HIV ड्रॉप आए की भी है और HCV थी सर। उस ज़माने में उस वक्त बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, मोस्ट ऑफ द कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रही थी जिनको ऑर्डर भी दिए गए। इस पे हम कमेटी हमें कोई लीनियंट व्यू लेना चाहिए रिगार्डिंग पैरा सेटल्ड। कोविड होने तक चल रहा है। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 85 है, 19.4.5.45 FIC फैसलाबाद का सर। सर ये लेट डिलीवरी और मेडिसिन की वजह से LD चार्जेस पड़ते हैं 6,41,000
450 रुपये सर। तो सर ये इसके लिए जो प्री PSU हुई है उसमें हमने ये डिसाइड किया था दोनों ऑडिट ने और मैनेजमेंट ने कि क्योंकि अभी तक रिकवरी नहीं हुई तो इसकी एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होनी चाहिए कि अनड्यू बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है वेंडर को। वेंडर कौन है इधर? डिफरेंट होगी सर। मैं सर इसमें सर अगर इफ़ यू अलाउ मी सर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सर समथिंग। सर इसमें एक तो सर इशू यही है कि हमारा सर ये सारा पीरियड जो है ना सर ये कोविड का था सर, और इस कोविड में सर ये इसमें सर हमने फोर्स मेजर जब सर प्री PSU मैं सर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, तो उसमें सर ये फैक्ट फाइंडिंग का था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ गई है, उसमें उन्होंने कहा कि कोई किसी फर्म को कोई अनड्यू बेनिफिट एक्सटेंड नहीं किया गया है। रादर सर ये कि जब हमने सर इसके ओरिजिनली सर इसमें 5 आइटम सर इसमें इन्वॉल्व हैं इस पैरा में सर। सबसे पहले सर डायलिसिस कैथेटर है सर, फिर दूसरे पे सर डिटेल में नहीं जाना, हमें बस मोटी बात समझ लगी। इसमें डीजी साहब ये फरमा रहे हैं कि हमने जो प्रोब रिपोर्ट है वो आ गई है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है सर प्रोब रिपोर्ट आ गई होगी। मामला तो बहुत क्लियर है सर कि इन्होंने जो सप्लाई देनी थी वो टाइम पे नहीं दी सप्लाई, और एक ही वेंडर है सर, एटको है कोई वेंडर जिसको 6.5 मिलियन का सप्लाई ऑर्डर दिया था। और ये सर मैटर हमारा 28 फरवरी को डिसाइड भी हुआ जॉइंटली कि इसकी एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होगी, उसके बाद हमसे शेयर किया जाएगा। आज अगर वर्जन चेंज हो गया था आई डोंट नो। वो कह रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमने मुरतब कर ली है। सर वो हमने नहीं अभी तक देखी, ना हमसे शेयर की देखी। आप यूं कर लें सेक्रेटरी साहब, इसका एक प्रोब करा लें। प्रोब हो गया सर ना, वो फैक्ट फाइंडिंग थी नहीं सर, इन्हीं की तरफ से प्रोब है सर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में सर प्रोब बना था, उन्होंने सर सारा कर लिया है और वो रिपोर्ट आ गई। उसमें सर ये एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड था सर ड्यू टू कोविड, क्योंकि सर चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो पा रही। एक्सटेंशन उनको जो हायर अथॉरिटी है उन्होंने दी थी? जी सर दी हुई है सर। सर इसमें फोर्स मेजोर की क्लॉज एक्टिवेट की गई है, वो हम DG ऑडिट के साथ शेयर करते थे जो प्रोब के अंदर हमारी। डीजी साहब अगर उन्होंने अथॉरिटी हायर अथॉरिटी ने उनको उसको तौसीह कर दी है एंड दे आल्सो इन्फोर्सिंग अ क्लॉज हियर, हमें क्या जी सर हमें कोई इतराज़ नहीं अगर हम ये चीज़ें दिखा दें और हमें वेरीफाई करवा दें। अभी तो कुछ वेरीफाई कर लें एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन द पैरा सेटल्ड। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 88 है सर, पैरा नंबर 19.4.5.55 नॉन रिकवरी ऑफ लॉस ड्यू टू नॉन रियलाइजेशन ऑफ रेंट ऑफ लैंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फ्रॉम द ATM सर। ATM सर एक फिक्स करवाई थी, उससे रेंट की मद में इन्होंने किसी किस्म की रिकवरी नहीं की। उस टाइम उस वक्त तक 3 लाख रुपए पेंडिंग थे। अभी लेटेस्ट पोजीशन सर बताएं। मैंने ये पैरा पढ़ा है और जब ये फैसिलिटी एक ATM वाली दे रही है डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल किसी को दे रहा है, तो हम उस पर भी हम चार्ज करें उनकी फैसिलिटी। ये कितनी जगह ले ली है उन्होंने, कितनी कुछ जगह प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, आप वहाँ पे ATM यूज करते हैं, उसका क्या रेंट लेना ये है? पैरा बनता है 6/6 का सर आमतौर पे जो सर्विसेज देते हैं उसका एग्रीमेंट तो बकायदा होता है। हाँ एग्रीमेंट पे आते हैं ना, एग्रीमेंट पे आते हैं। आई विल गो थ्रू दिस द एग्रीमेंट। लेकिन एक ATM मशीन के ऊपर आप ऑडिट पैरा बना रहे हैं, ये किस किस्म का पैरा है सर? उसमें प्रोवाइडेड जो फैसिलिटी टू मेक पीपल सेफ कि वहाँ से पैसे लें ATM से वो जमा कराते हैं। आप कह रहे हैं 6/6 पे नहीं होता वो, उसका आप कह रहे हैं वो बंद कर देंगे, बैंक को क्या फर्क पड़ेगा? जी जी फैसिलिटी तो है सर, फैसिलिटी है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द पब्लिक इज जस्ट अ गुड थिंग, तो बुरी चीज नहीं है ये। सो इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो रही है सर, सर कितनी क्यों नहीं बिजली AC। अब यहाँ पे आते हैं डीजी साहब थोड़े कैंप पावर से अफसर सारा दिन AC चलाने होता तो कोई नहीं पैदा पैसा लेना डॉक्टर ने मगर पैसे। सेक्रेटरी साहब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कोई बिजली का और बाकी जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ही बैंक्स के साथ कर रही होती, तो उसकी क्लॉज बाय क्लॉज देखना पड़ेगा। लेकिन मैं जनरली स्पीकिंग आई एग्री विद योर कंसर्न कि ये आपको सिर्फ इसी हॉस्पिटल के अंदर ATM की फैसिलिटी के इश्यूज नज़र नहीं आएंगे, आगे जाके भी आपको कुछ ऑडिट पैरास नज़र आएंगे जहाँ पर ATM की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बारे में बात हुई है। सो इसके ऊपर हमें कोई एक कंसिडर्ड डिसीजन करना पड़ेगा सर कि हमने इनको पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। व्हाट डू यू सजेस्ट कि जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसकी
इतनी क्यों इलेक्ट्रिसिटी ले सर रही देखिए है? दो तीन चीज़ें, एक तो ये है कि ये हॉस्पिटल, ये जो बैंक्स होते हैं जब अपने ATMs लगाते हैं, या तो ये हमें वहाँ पे जब कोई बंदा पैसे विड्रॉ करता है उस पर जो कमीशन चार्ज करते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं ना लें, तो फिर तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना चाहिए। जनरली स्पीकिंग आप 1000 रुपया भी विड्रॉ करें तो उसके पीछे कोई 2 रुपये काट लेते हैं, आप 5000 काटें आपके पीछे 100 रुपया काट लेते हैं, तो वो बिजनेस तो कर रहे हैं सर अपने उस मशीन को लगा के। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग में इट शुड बी अ टू वे ट्रैफिक, टू वे एक्सेसिबल होना चाहिए, मेरी भी ये है, बट दैट शुड बी, यू शुड बाइंड देम इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इट शुड बी डन लाइक दैट। लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दो फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर लगा रही होती है ना सर, एक तो ये कि उनके अपने एम्प्लॉयज़ की फैसिलिटेशन होती है, नंबर 2 पेशेंट्स की फैसिलिटेशन, कि किसी को वहाँ मौके से पैसे विड्रॉ करने हैं, कोई चीज़ खरीदनी है तो वहाँ उसकी फैसिलिटेशन के लिए। सो आई थिंक हम एक जनरल इंस्ट्रक्शंस इशू कर देते हैं कि नेक्स्ट ईयर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं उसमें किसी तरीके से इसको बाइंडिंग फैक्टर लेके आप फिर यूं कर लें, नहीं व्हाई नॉट, जो ये ATM मशीन लगाई होती है, अगर तो स्पेसिफिक ऑक्यूपाइड किया हुआ है एरिया, जैसे एक छोटा सा अक्सर आप देखते हैं कि ATM मशीन लगाने का वहाँ पे AC भी लगा होता है एक, अगर वो AC भी 24 आवर्स चल रहा है तो फिर तो वो बनता है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट में उसको इलेक्ट्रिफिकेशन और उसकी चीज़ों का चार्जेस का इनको लेना चाहिए। अगर तो वो किसी, जैसे अब हमारी असेंबली में वो किसी फ्लोर के ऊपर सिर्फ एक ATM मशीन रख देते हैं खाली, और वहाँ पे कोई AC या कोई और फैसिलिटी नहीं दे रहे, तो उस मशीन का इनको कोई किराया वगैरह नहीं लेना चाहिए। आई गिव यू एग्जांपल कि हमारे पास अगर कोई कैंटीन है, यहाँ पे हमने एक दी हुई है एक कंपनी को, और बिजली हम उनसे चार्ज नहीं कर रहे और बाकी चीज़ें, फर्नीचर भी हम उनसे नहीं चार्ज कर रहे, फर्नीचर भी सेक्रेटेरिएट ने दिया है, सो ऑब्वियसली वो हमें सब्सिडाइज रेट के ऊपर वो बेवरेजेस एंड यू नो सैंडविचेस देंगे। सो आप यूँ कर लें कि एक मैकेनिज़्म तरतीब दे लें जिसमें आप इन फ्यूचर और जो अभी भी जो चल रहे हैं उनको एक दफ़ा एग्जामिन कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें इसका, जिसमें हम ATM मशीन बैंक्स को जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ में भी हुआ है, उसमें भी ये ऑडिट ने ऑब्जेक्शन उठाया था। जी मैडम रहीला। सर देखिए, आप एक गवर्नमेंट लैंड यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर है, बेशक आप उनको फैसिलिटेट करें, पूरी दुनिया के अंदर ये बात है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। या तो वो जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी बात की तो वो तो कह देना बैंक कि जनाब मैं नहीं आपसे पैसे चार्ज करता, आप यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कर दें। एक तरफ वो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट से फ़ायदा भी ले रहे हैं। सर ये एक डिफरेंट चीज़ है, यकीनी तौर पे ये पैरा बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, तो मैडम, अपना बिजनेस ना करें वो, अगर उन्होंने फैसिलिटेट करना है, इतनी उनके दिल में हमदर्दी आई है, या अल्टरनेटिवली साल की कोई रेंट दे दें, बिल्कुल या साल का कोई रेंट दे दें। सो वो तो हॉस्पिटल और बैंक का एक आपस का जो अरेंजमेंट है उसको आप एक पॉलिसी वाइज किसी लाइन में ले आए सर। जी आप क्या कह रहे हैं, कुछ फरमाना सर? इसमें मैं सर एक छोटी सी गुजारिश करना चाह रहा था। इसमें सर हमें जो HBL ने हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ को सर एक फैसिलिटी दी है, HBL एट वर्क के नाम पे हमने सारे जो सैलरी अकाउंट हैं हमने उसमें कन्वर्ट कर दिए। अब हमारा जितना भी सर एम्प्लॉई है उसको एनुअल चार्जेस सर ATM के नहीं पड़ते। आप आपने उनको दो फ़ायदे दिए हैं, एक तो आपने अपने सैलरी अकाउंट उनको दे दिए और एक सर ऑलरेडी सर था ऑलरेडी अकाउंट, उसके बदले में वो आपको क्या दे रहे हैं? उसके बदले में सर वो देखिए जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं सर उनको सर वो ATM के एनुअल चार्जेस नहीं ले रहे सर, उनकी सर जहाँ से भी वो विड्रॉल करेंगे कैश की अदर देन HBL की, वो सर उनको वो चार्जेस नहीं पड़ेंगे सर। We don't know about that, sir. सर ये हमारे यहाँ सर उन्होंने किया बड़ा यूनिक किस्म का रेंज बता रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप अपना डेबिट कार्ड कहीं पे किसी भी ब्रांच में जाके स्वाइप करें और आपको वहाँ पे चार्जेस ना हो, ये होता नहीं। सो वी नीड टू लुक इनटू दैट। HBL एट वर्क का है सर, बहरहाल सर इसको देख लेते हैं सर, ये जो आपने पॉलिसी के बारे में डायरेक्शन दी है इसको हम दोबारा से एग्जामिन कर लेते हैं और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को पाबंद करेंगे कि ईदर दे शुड चार्ज एनुअल रेंट ताकि इसको बिजली के और बाकी खर्चे को इसी के अंदर फैक्टर इन किया जाए, अल्टरनेटिवली या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जो चार्जेस के बगैर वहाँ पे फैसिलिटी देंगे। बिल्कुल ठीक है, हम इसके मुताबिक कर लेते हैं। या तो कोई मिड वे देख लें कि अपने चार्जेस जो बिजली के हैं वो पे कर जरूर करें। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 92 है, ये रेफर है पेज नंबर 92, 19.4.6.47 irregular appointment ऑन एड हॉक बेसिस अगेंस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ $1 million सर। ये इन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर्स अपॉइंट किए हैं और हर साल बाद इनकी सर एक्सटेंशन हो जाती है विदाउट फर्दर एडवर्टीजमेंट और विदाउट रेफरिंग टू द PPSC। अभी तक काम कर रहे हैं? जी सर।
बट यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने या चीफ मिनिस्टर साहब ने 2021 में इसको एक समरी के थ्रू इसे एडहॉक अपॉइंटमेंट को रेगुलराइज की है या एक्सटेंशन दी है ऐसी है, रेगुलराइज तो नहीं की। अभी तक वो एक्सटेंशन इंटैक्ट है। सर देखें एडहॉक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। एडहॉक किया जाता है अगर पब्लिक सर्विस कमीशन नंबर 1 फर्स्ट टिक बॉक्स ये किया जाता है कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भेजी हो कि ये पोस्ट ये वेकेंट है लेकिन अभी फिल करने में प्रॉब्लम है, देर है, हमें फौरी तौर पे एडहॉक बंदे को अपॉइंट करने की इजाज़त दी जाए। सो पहली तो रिक्वायरमेंट ये है कि एडहॉक के लिए जाने से पहले आपने पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भेजनी होती है। ये जिस साल का ये सारा वकूआ है सर, उस साल कोविड का ज़माना है, उस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट में डिले था, एडहॉक होती रही और उसको एक्सटेंड किया जाता रहा और पॉलिसी में समरी के अंदर ये डिसीजन आता रहा कि सेक्रेटरी ऑफ दैट डिपार्टमेंट विल कंटिन्यू एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट टिल द टाइम के बंदा वहाँ पे आ नहीं जाता। तो ये डीजी साहब की जो ऑब्जर्वेशन है कि जी एक्सटेंशन अगली दफ़ा लेने के लिए भी आपको यू हैव टू गो बैक टू द चीफ मिनिस्टर, वो समरी के ऊपर ऑलरेडी परमिशन मिली हुई है कि सेक्रेटरी ने ये करना था सर। फाइनेंस अगर चीफ मिनिस्टर की है इजाज़त तो फिर तो इजाज़त होनी चाहिए। बिल्कुल सर, चीफ एग्जीक्यूटिव की इजाज़त है तो बिल्कुल ठीक है, सेटल करें पहला। सर ये इजाज़त तो है लेकिन लिखा हुआ है अप टू 1 ईयर और टिल द पोस्टिंग ऑफ ए रेगुलर इनकम्बेंट और विच एवर इज अर्लियर। तो रेगुलर इनकम्बेंट आई नहीं रहा, विच एवर इज अर्लियर ये लिखा हुआ है, यानी कि इट्स मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। रिपीट अगेन सर, इसमें लिखा हुआ है फॉर कंटिन्यूशन ऑफ देयर एडहॉक अपॉइंटमेंट फॉर ए पीरियड फॉर अप टू 1 ईयर और टिल द पोस्टिंग ऑफ ए रेगुलर इनकम्बेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर रेगुलर इनकम्बेंट आता ही नहीं है फॉर अनदर 5 years, लेकिन सेक्रेटरी साहब आपने कुछ किया इसके लिए? सर ये जैसे जैसे वो पोजीशंस फिल होती जाती हैं, रिक्वेजिशंस की बेसिस पर पब्लिक सर्विस कमीशन से रिकमेंडेशंस आती जाती हैं तो रेगुलर एम्प्लॉइज़ को फारिग करके उनकी जगह पे एडहॉक को फारिग करके रेगुलर को लाया जाता है सर। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यूस है सर। हाँ, तो सर इन दिस इस मैटर में कोई एक्सटेंशन की बात हो रही है सर। चौधरी शेरिल साहब आप कुछ कह रहे हैं? एक्सटेंशन किसने अलाउ की? सर ये चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरी ने की है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑन अ समरी जो कि मिली थी कि जी सेक्रेटरी विल कंटिन्यू एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट टिल द अराइवल ऑफ द न्यू इनकम्बेंट और फॉर जो है ना फॉर बट हु विल यू आर राइट बट ऑडिट एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड वो कह रहे हैं कि 1 साल तक उनको अलाउ किया था। This is what Sir, it is further written in the second paragraph for a period not exceeding 1 year or till the posting of a regular incumbent whichever is again earlier। ये 13(1) और 13(2) जो सीएम ने अप्रूवल दी हुई है सर, ये उसकी नोटिस में पढ़ रहा हूँ। ये डीजी साहब आपका कहना है कि 1 साल क्या था? जी सर, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि मैक्सिमम 1 साल तक दी थी, उस पर तो हमारा एतराज़ नहीं, लेकिन अभी तक ये कंटिन्यू कर रहे हैं सर। और सेक्रेटरी साहब अगर तो रेगुलर जो डॉक्टर है वो आते जाएं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन और वो उनकी प्लेसमेंट कहीं और होती जाए तो ये एडहॉक वाले तो चलते रहेंगे सर। एसेंशली तो जिस जगह के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन जाती है उस बंदे को वहीं पे जाके अपॉइंट होना होता है। ओके, अगर हमने फॉर एग्जांपल प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए रिक्वेजिशन की है और ये सोच के की है कि पूरे पंजाब के अंदर 50 असाइनमेंट्स हैं और 50 में ये वाला इदारे की भी वैकेंसी पोजीशन मौजूद है और 50 लोग हासिल हो गए रिकमेंडेशंस में, तो अगर 50 लोग एडहॉक लगे हुए तो 50 लोग फारिग हो जाएंगे। लेकिन अगर रिकमेंडेशन ही नहीं मौसूल होगी तो ये एडहॉक लोग कंटिन्यू करते रहेंगे सर। चलिए इसका ये पोस्ट कौन सी है, रजिस्ट्रार की है या डॉक्टर की है? इसमें कौन सी असाइनमेंट है सर? इसमें मैं आपको गुजारिश करता हूँ, इसका मैं वे फॉरवर्ड अगर आप इजाज़त दें, अगर उस वक़्त के अपॉइंटेड लोग एडहॉक अगर इस वक्त भी अवेलेबल नहीं है तो हम कैबिनेट के पास ले जाते हैं सर इनके रेगुलराइजेशन करने के लिए, अगर डीजी ऑडिट की ऑब्जर्वेशन है। रेगुलराइज तो कराना चाहिए, बट असाइनमेंट क्या कर रहे हैं वो? सर एमओज होंगे, सीनियर रजिस्ट्रार्स होंगे, एपीज़ हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, सो ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ सेक्टर के हमारे जो एम्प्लॉयज। सर मेरा एक सवाल है कि सर ये जो डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं मुझ की, या सिर्फ ये फैसलाबाद में है या ओवर पंजाब बाकी हॉस्पिटल्स में भी हैं? और अगर हैं तो फिर हमें एक तरह की पॉलिसी सबके लिए अडॉप्ट करनी चाहिए। दिस पैरा एसेंशियली रिलेट्स टू एफआईसी, लेकिन अगर आप इजाज़त
इजाज़त दें तो हम इसको देख लेते हैं कि अगर तो बाकी इदारों में भी ऐसा ही इसी साल के ऑडिट पैरास के इश्यूज़ हैं तो हम एक कलेक्टिव समरी बना के ले जाएंगे सर। लीजिए हाँ प्लीज़ डू दैट सर, डू दैट कर लें। और दूसरा सर अगर इसमें पॉसिबल है तो फिर हम एफपीएससी के ज़रिए जो है सॉरी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हमें जो ज़रूरत है उन सीटों को भी हम उनको रिक्वेस्ट की जा सकती है वो तो ताकि बहुत ज़्यादा सीटें हैं सेक्रेटरी साहब, जितनी मैक्सिमम की जा सकती हैं। जब आप इसकी रेगुलराइजेशन के लिए जाएंगे तो साथ एक समरी काइंडली जो एसएनईज हैं उनके लिए भी ले जाएं जो पोस्ट वेकेंट हैं। उसकी समरी बनाने की जरूरत नहीं, उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भेजनी है सर। हाँ वो वी कैन डू दैट, लेकिन सीएम से उसकी अप्रूवल तो लेनी है। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 95 है, एफआईसी का पैरा 19.4.11.6 अनलॉफुल है अनइकोनॉमिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन विदाउट ओपन टेंडर। सर ये विदाउट ओपन टेंडर टोटल प्रोक्योरमेंट हुई थी 2 करोड़ 70 लाख की विदाउट इन्वाइटिंग एनी टेंडर यूजिंग द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग और एंड कोटेशन वर्क। इमरजेंसी क्लॉज तो नहीं लगाया था? नहीं सर हमें नहीं उन्होंने कोई ऐसा दिखाया इमरजेंसी क्लॉज लगाया तो ये बताएंगे। इजाज़त सर जी सर इसमें एक्चुअली हमारा जब सर 3-4 कंडीशन थी हमने जो कोटेशन पे सर की है इसमें सर हमें परमिशन भी होती है सर कि अगर आपका टेंडर प्रोसेस में है और कोई ऐसी मेडिसिन जिसकी शॉर्टेज आ रही है कार्डियक इंस्टीट्यूट है सर तो उसमें हम सर कोटेशन पे कर लेते हैं। ये कौन सा रूल है? ये सर हमें जो पेपरा का सर अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट उसमें सर परमिशन है सर 59AB सर पेपरा का सर 59AB सर जी सर। अच्छा सर फिर उसके बाद सर हमने सर उस टेंडर के बाद सर हमने अवार्ड कर दिया, अब वो सर वहाँ से मेडिसिन अवेटेड है उसने सप्लाई करनी है, उस दौरान अगर कोई सर शॉर्टेज आती है तो फिर भी हमारे पास यही सर मेथड होता है कि हम फिर उसको अल्टरनेटिव मेथड क्लॉज इसको क्लॉज 59 कहते हैं इमरजेंसी क्लॉज जो आप 59AB कह रहे हैं ये आपने इन्फोर्स किया है? ये सर परवी अलाउ करता है सर कि अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट कि अगर आप ओपन टेंडर के बजाय सर आप उसको कर लेते हैं पैटी परचेज सर ऑन कोटेशन बेसिस सर 2 करोड़ इज नॉट पैटी परचेज। उसकी कोई लिमिट होती है? सर वो हाँ आप सर 5 लाख तक सर हो गया सर। ये तो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये सर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स है डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डेट्स पे पूरे साल फाइनेंशियल ईयर का। मैंने सर इसको देखा है सर ये टोटल जो मेडिसिन का बजट था उसमें सर 2.78% बनता है सर। ये सर एक डेट में नहीं सर हुआ है कि हमने 2 करोड़ 78 लाख की एक दिन में ही हमने खरीद ली हो या एक दिन में तो ये सर साल के मुख्तलिफ पीरियड में सर ऑडिट या तो हमें समझ नहीं आ रही या पैरा की वर्डिंग हमें समझ नहीं आ रही ये क्या है? सर बेसिकली ये इन्होंने प्रोक्योरमेंट की है मेडिसिन की और मास्क वगैरह की इक्विपमेंट की और वो स्प्लिटिंग की है सर। ये जो एक क्लॉज कोड कर रहे हैं ना 59B ये पेटी परचेज का है कि 2 लाख से कम का कर रहे हैं। 2 लाख से कम जी 2 लाख से कम का कोई 2 लाख से कम की परचेज की है जी 2 लाख से कम की परचेज करते करते ये 2.25 करोड़ पे पहुंच गए सर। अच्छा तो ये सारी एक ही फाइनेंशियल ईयर में हुई है? जी सर एक ही फाइनेंशियल ईयर में हुई और इस पे इन्होंने 59AB का जो कवर ले रहे हैं वो फाइनेंस बनता है इनका? नहीं सर इधर इन्होंने एक दफ़ा टेंडर दिया हुआ था तो टेंडर के बाद ये टेंडर में ही परचेज कर सकते हैं बाहर नहीं कर सकते और ये रेगुलरिटी हुई है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए रेगुलराइजेशन करवाना नहीं चाहिए इसमें कोई ऐसी नहीं। जी सेक्रेटरी साहब देख रहे हैं क्या हो रहा है ये? सर इसको हम रेगुलराइजेशन के लिए प्रोब पहले हम करवाएंगे सर और प्रोब करा के फिर रेगुलराइजेशन के लिए जाएंगे सर। इसका प्रोब कराएं बिल्कुल एंड सेक्रेटरी साहब फिक्स रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। नेक्स्ट सर ये पेज नंबर 99 है एफआईसी फैसलाबाद 19.4.15.2 सर ये जरा सीरियस पैरा है कि ये एक्सपायर्ड स्टंट्स से देवर यूज इन द पेशेंट्स वो पेशेंट्स में इस्तेमाल हुए एक्सपायर्ड स्टंट्स। एंड सेक्रेटरी साहब दिस इज ये तो बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है एंड इसमें एसडीएसी भी हुई थी। एसडीएसी 2022 में हुई थी। 2022 में एसडीएसी ने कहा था मैं प्रोब करूंगा, वो प्रोब हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक?
अच्छा सर, एक तो मुझे सर इजाज़त है, ये सर स्टंट का नहीं केस है, ये एक्चुअली जो पॉइंट आउट हुई थी सर वो एंटी ICV किट्स हैं और सर कोविड की किट्स थी सर। तो ये सर ड्रॉप इन हाइट सेंसिटिव किट्स हैं सर, ये स्टंट का केस सर नहीं है, स्टंट का केस सर PIC का केस है जो पैरा है सर। तो इसमें सर प्रोब हो चुका है सर, और उसमें और सर मैं खुद भी सर इसको देखा है सारा रिकॉर्ड, ये सर हमने कोई एक्सपायर्ड उसमें वो किट्स थी सर पैथोलॉजी लैब में सर यूज़ होती हैं, वो हमने कोई सर एक्सपायर्ड नहीं की है और वो विद इन जो बिफोर एक्सपायरी सर वो यूटिलाइज हो गई हैं सर। ये पैथोलॉजी की लैब किट थी सर, और सर प्रोब भी हो गया सर, उस प्रोब ने भी सर ये इस फैक्ट फाइंडिंग यही पॉइंट निकाला है जी कि कोई एक्सपायर्ड नहीं हुआ। कहाँ है प्रोब, कहाँ है प्रोब सर? अभी कल ही रिपोर्ट सर फाइनल हुई है, तो सर अब हम पुट अप कर देते हैं सर बिफोर द डिपार्टमेंट और DG ऑडिट को भिजवा देते हैं सर। ये प्रोब रिपोर्ट आप देंगे सेक्रेटरी साहब को? सेक्रेटरी साहब नेक्स्ट उसमें आके हमें इसकी बताएंगे, जब हम इसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट लेंगे तब ये प्रोब के साथ इस पैरा का फेट, इस पैरे के ऊपर बात करेंगे हम तब। और आपका कहना है कि इसमें स्टंट कोई नहीं है इसमें? जी सर किट्स हैं, ये वो कंबाइंड पैरा, ये किट्स हैं सर। ये वो जी स्टंट्स आगे आएंगे, वो क्लाउड पैरा है ना जी सर? वो रश ऑफ ब्लड में DG साहब नहीं वो क्लब हुआ ना, वो क्लब हुआ इस वजह से। ऑडिट आप ये क्यों सनसनी फैलाते हैं सर? ये असल में ना पैरा क्लब्ड है स्टंट्स का और किट्स का, एक्सपायर्ड किट्स का, तो वो इसमें से आपको बताया गया। आगे आप देखेंगे तो स्टंट्स भी आ जाएंगे एक्सपायर्ड जो यूज़ हुए हैं पेशेंट्स में। बट ये कोविड की जो भी कोविड की किट्स भी एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलें इसको हम डेफर कर रहे हैं। कोविड की बात पे ध्यान ही तब दिया जाएगा ना जब सनसनी फैलेगी। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 102 है, पैरा नंबर 19.4.21.4 FIC इस्लामाबाद। ये क्या लिखा है? Irregular placement of the amount shifted from SG account instead of utilizing or surrendering the same। सर ये अमाउंट विड्रॉ हुई और ये SG अकाउंट को शिफ्ट हो गई, जो या तो वो सरेंडर होनी चाहिए या ट्रेजरी में डिपॉजिट होनी चाहिए। और अभी तक आई क्यों नहीं है STC? इसलिए फिर हमने ये सर एक डेवलपमेंट स्कीम सर अप्रूव थी हमारी रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट की सर। हमने सर ये 2 साल के पर मुहित थी सर स्कीम। पहले साल जब हमने सर वो अमाउंट SDA से हमने इसलिए विड्रा की और बोर्ड की अप्रूवल से की एडवांस विड्रॉल की, क्योंकि इसकी सर LC खुलनी थी, लेटर ऑफ क्रेडिट खुलने थे, और उसकी वजह से फिर सर ये बैंक में गई। ये सर प्री PAC में पैरा डिस्कस हुआ है सर, उन्होंने कहा है कि एडवाइस ले फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट। नहीं ये इस PAC जो 28/2/2025 को हुई है तब आपने मूव किया है एडवाइस लेने के लिए? डिपार्टमेंट ने उसके बाद जी प्री तो जो 22 में SDAC हुई थी उसमें क्या करते रहे हैं? उसमें भी तो यही फैसला जी, किया? उसमें यही फैसला था जी। उसके बाद तो 3 साल वेट किया आपने दोबारा भी उसी फैसला करने के लिए? सर इसमें तब इसके फ़ौरन बाद ही मेरी सर पोस्टिंग होगी फैसलाबाद में। जब मेरी सर वहाँ पे पोस्टिंग हुई तो मैंने 2-3 दफ़ा इसको रिक्वेस्ट को भेजा है कि जी इसको काइंडली टेकअप कर लें, लेकिन अब फिर सर चूँकि डिटेल में फिर उस दिन सर डिस्कस हुआ है पैरा, तो उसमें फिर सर ये डिसीजन हुआ है कि जी कि अब टेकअप कर लिया जाए विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। पैसे इस वक्त कहाँ जी? इस वक्त पैसे कहाँ? इस वक्त वो क्लोज होगी इसकी। नहीं पैसे कहाँ हैं इस वक्त? यूटिलाइज हो गए ना सर? यूटिलाइज सारे 100% यूटिलाइज हो गए? जी सर 100%। और वो स्कीम क्या थी? रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट सर। और वो इक्विपमेंट सारा रिप्लेस हो गया? जी सर वो रिप्लेस हो गया, आ गया सर, इंस्टॉल हो गया। इक्विपमेंट था क्या उसमें सर? सर एनेस्थीसिया मशीन्स थी, उसमें हार्ड लंग मशीन्स थी, उसमें मोबाइल एक्सरे यूनिट था और बेड्स थे इसके अंदर, और 100 मॉनिटर्स थे इसके अंदर सर। इसके अंदर को तकरीबन ये 11 करीब आइटम थे। फर्स्ट ईयर में सर 4 आइटम प्रोक्योर किए थे हमने, और ये कुछ पैसे बचे थे जो अकाउंट में रखे गए थे, क्योंकि ये ADP ऑन गोइंग थी। फिर हमें फर्दर जब में मिली ग्रांट तो फिर सर हमने नेक्स्ट ईयर में सारी स्कीम कंप्लीट कर ली थी। सर इसमें प्रोसीजर ये था कि इन्होंने 1 साल के पैसे बैंक अकाउंट में ले गए उस थ्रू लैब से बचाने के लिए, फिर इनको वापस कर देने चाहिए थे गवर्नमेंट को, वो नहीं किए, बैंक अकाउंट में रखे और उसको आप यूटिलाइज कर चुके हैं। तो ये तो अब फेट अप्लाई हो गया है। इसमें तो आपके किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अब आप क्या आप इसे रेगुलाइज करना पड़ेगा, जो पैसे वापस नहीं किए लेकिन आगे इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, अब तो रेगुलाइज ही करना पड़ेगा। सर 2 चीज़ें सर इसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन ये है कि इट्स नॉट अ केस ऑफ एम्बेजलमेंट,
इट्स अ केस ऑफ क्या कहना चाहिए कि प्रोसीजरल लैप्स। पैसे अल्टीमेटली उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हुए हैं जिस चीज़ के लिए आए थे सर। एलसी के लिए खुलना था, एलसी के लिए इस्तेमाल हुए, चूँकि लैप्स होने का जिस तरह फाइनेंस सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं, उससे बचने के लिए शायद महकमे ने, इन्होंने हॉस्पिटल ने इसको अपने एसडी अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। उस पैसे ने अल्टीमेटली जाना फिर बैंक अकाउंट में ही था सर एलसी खोलने के लिए सर। तो ये प्रोसीजरल लैप्स है, इट्स नॉट मैटर ऑफ एम्बेजलमेंट जी। और आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन ऑलरेडी भी यूटिलाइज, ये पैरा सेटल हो जाएगा सर, इसको पैरे को सेटल कर ले। बट सेक्रेटरी साहब, यू बीइंग द प्रिंसिपल फाइनेंस ऑफिसर, ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं या ये आपसे ये इसी लेवल पे कार्डियोलॉजी फैसलाबाद के लेवल पे डिसाइड हो जाती हैं? तो उस वक्त ये फिर हमारे नॉलेज में आया सर, और ये प्री पीएससी के लेवल पे फिर ये डिस्कशन शुरू हुई। उससे पहले इट इज़ बेटर बिटवीन डिपार्टमेंट एंड हॉस्पिटल एंड, बट पार्किंग ऑफ फंड्स इज देयर बिजनेस सर, देयर बिजनेस, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट दे सर। जनरली होता ये है कि अगेन हॉस्पिटल्स की फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीम है मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट के बारे में, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टली सेंड्स द बजट इन द अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल, सो देन प्रोसेस किक्स इन देयर। उसको फिर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से उसको टेंडर करना है, कैसे प्रोसेस करना है, वी कीप टैप ऑन दैट। लेकिन ये नहीं होता कि सिर्फ वो पैसे किस अकाउंट में कैसे कैसे ट्रांसफ़र हुए, बहुत माइन्यूट डिटेल में जाने वाला काम नहीं होता सर। जनरल इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है कि कितने फंड्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल के पास। भाई इट वॉज अ बैड प्रैक्टिस, ये नोट फरमा लें, डिसप्लेजर भी नोट फरमा लें। थोड़ा सा चलिए, 5 मिनट बाद वो करना है ना, आप एडवाइजरी की मीटिंग है। ये कौन सा है? चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान, 106 सर, पेज नंबर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान। कल पे करें। अच्छा, सर ये जो ऑफिसर आए हैं अपना तारुफ कराएंगे। जी, डॉक्टर कामरान आसिफ MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान। फरहान सईद, डायरेक्टर फाइनेंस चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान। जी सर, सर पेज 106, अनऑथराइज पेमेंट ऑफ पे इन लॉन्सेस, कन्वेंस लॉन्स की सर पेमेंट थी जो अनऑथराइज की गई थी 7,69,000 की, ऑल हैज़ बीन रिकवर्ड एंड वी हैव वेरीफाइड द सेम सर। सेटल। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 110 है सर, अनऑथराइज पेमेंट ऑफ पे इन लॉन्सेस, ईवल के पीरियड के दरमियान सर पेमेंट हुई थी, इसमें से सर 4,02,000 की टोटल अमाउंट थी और अभी 27,000 की अमाउंट रिमेनिंग है। बकाया अमाउंट वेरीफाई कर ली है सर। इसमें सर ऑडिट ने 4,02,000 पॉइंट आउट की थी, हमने सर 4,48,000 रिकवर कर ली है, 27,000 बची थी सर, वो भी रिकवर कर लिया सर, वो भी कर लिया, 4,76,000 कर लिया सर, 4,002 के बदले सर। ज़्यादा कैसे कर गए? ज़्यादा कैसे कर लिया आपने? ऑडिट ने जो पॉइंट आउट की ना सर, उसमें कोई डेज का फर्क था, तो एक्चुअल रिकवरी 4,76,000 ही बनती थी सर। समझ नहीं आई, क्या दोबारा बोले, आपने ज़्यादा कैसे कर लिया? 4,02,000 का ऑडिट ने कहा पैरा बना, वो 4,76,000 रिकवर करके आ गया सर। एक्चुअल रिकवरी 4,76,000 ही बनती थी जो हमने कर लिया है सर। ऑडिट ने जब पॉइंट आउट किया तो उसमें डेज का फर्क था सर। अच्छा, एक्चुअल 4,76,000 बनती थी सर, रिकवर हो गई है सारी सर। इसको देख लेना चाहिए सर कि मुझे लगता है कुछ और रिकवरी भी ना हो। जी फाइनेंस नहीं, अब तो ये खुद वॉलंटरीली दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ और भी है इसमें। अच्छा, मेरा ख्याल है ना फाइनेंस, मेरा ख्याल है इनकी सर्विसेज लें, ही शुड बी सेंट टू द IMF फॉर बेटर डील। ये वेरीफाई करें फिर सेटल कर दें। जी सेटल। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 113, पैरा नंबर 19.4.5.0। सर ये नॉन रिकवरी ऑफ रूम रेंट और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फ्रॉम PGR ट्रेनिंग स्टूडेंट्स 9,10,000 की रिकवरी रहती है सर, और ये PSC में प्री PSC में भी ये रिकमेंड हुआ था कि ये रिकवरी कर लीजिए 9,10,200 की PG ट्रेनिंग से। ये वार्डन ने क्या गलती की थी? वो व्हाट वाज द केस, क्या है?
सर रूम रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे सर। अच्छा, रेंट पे वो लोग रहे, स्टूडेंट्स रहे और फिर वो जी वो रिकवरी विदाउट पेइंग दे लेफ्ट। जी सर, जो भी डिसाइडेड था वो पे नहीं किया था उन्होंने। ये तो फाइनेंशियल कंट्रोल बड़ा वीक रहा है इधर। उनको ढूंढना कहाँ से? ढूंढेंगे कैसे? जी सर, आप ये कर सकते हैं रिकवरी? सर इसमें पीजीआर जो हमारे होते हैं सर उनकी रिकवरी है। इसमें एज सच सर उस टाइम किसी किस्म का कोई पीजीआर क्या होता है? सर ये ट्रेनिंग होते हैं हमारे सर, जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर। जी सर। हमें लेमैन की टर्म में समझानी है आपने बात प्लीज़। तो सर उस वक्त कोई पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि उनसे कोई रेंट, रूम रेंट या डिडक्शन की जाती सर। तो किसी भी पूरे पंजाब में कहीं पर डिडक्शन नहीं हो रही थी सर उस वक्त। तो उस वक्त अब ये पीजीआर वैसे भी इनकी कंप्लीट हो गई ट्रेनिंग सर, तो इनको अब ढूंढना। और ये लास्ट पीएससी में सर डिस्कस हुआ था पैरा, तो लास्ट पीएससी ने यही कहा था कि इसको प्रीवियस को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से वेव ऑफ करा लें और फ्यूचर के पॉलिसी बना लें सर। तो फ्यूचर पॉलिसी बना ली है आपने? सर हमने सिंडिकेट में अपने उस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में रख दिया सर। ये वो चीज़ है कि राइट ऑफ नहीं हो सकता, एफर्ट करेंगे। राइट ऑफ हम इस तरह नहीं कर सकते। नहीं, फाइनेंस जब अगर वो कहीं तो ये रेगुलराइज होएगी, बिल्कुल होगी। ये राइट ऑफ होगा ना, क्योंकि रिसीट आनी थी। हम उसको अब रिसीट नहीं ले रहे, इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। लेकिन राइट ऑफ का ये असूल है कि पहले ये एफर्ट करेंगे और जब ये बताएंगे कि ये एफर्ट कर लिया, एक रिपोर्ट बनाएंगे, तो फिर हम देखेंगे। आपने यही डायरेक्शन हमारी तरफ से ले लें कि आपने रिपोर्ट देनी है कि आपने क्या एफर्ट्स किए हैं इनकी रिकवरी के लिए, क्योंकि ये पैरा तो फिर आता जाएगा फाइनेंस, फिर हर साल आएगा। ये हर साल आएगा, इसलिए हमें इसको इस तरह देखना है कि राइट ऑफ अगर एक दफ़ा कर लेंगे तो फिर हमेशा ही करना पड़ेगा। तो इनसे रिपोर्ट लेनी ज़रूरी है, उसकी एफर्ट देख के सर फैसला किया जाएगा। सर ये रेट्स जो है ना सर, ये नोटिफाइड हैं 2015 में, हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने रेट्स हैं, उसी के तहत पैरा बनाया। ये नहीं कि ऐसे रेट्स नहीं थे। हाँ, ये प्रैक्टिस नहीं थी, ये कह सकते हैं। लेने चाहिए थे अगर प्रैक्टिस, अगर लिखा हुआ था फाइनेंस ने। डेफर है ये। नेक्स्ट पे सर पेज नंबर 116, ड्रॉल ऑफ पे इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन पोस्ट। सर सैंक्शन पोस्टों से ज़्यादा पेमेंट विड्रॉ की गई है मुख्तलिफ ग्रेड्स में। पेज नंबर 116 सर, 116 नंबर पेज। आप प्री पीएसी रिकमेंडेशन भी पढ़ लें ज़रा। सर इस रिकमेंडेशन यही थी कि जो उन्होंने क्लेम किया था कि लिखा दी ऑडिटी फॉर्मेशन apprised that no payment was made beyond the sanction strength. Actually, the posts as pointed out by audit were upgraded in next scale, and record relating to such upgradations was provided to audit. The forum directed the audit information to get the record re-verified from audit with detailed working and annexures. तो सर वो री-वेरीफाई अभी तक नहीं करवाए, वो जब करवाएंगे तो हम आपको रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। सर इसमें रिक्वेस्ट ये है कि किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं हुई सर। ऑडिट ने सर 4 स्केल उठा लिए, एक स्केल 15 है सर। ऑडिट ने कहा जी आपने सैंक्शन पोस्ट आपके पास थी 10, आपने 14 को पेमेंट कर दी सर। उसमें मैंने ऑडिट को कंप्लीट रिकॉर्ड दे दिया कि 4 लोग सर मेरे अपग्रेड हुए ऑन द डायरेक्शन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट सर। तो अल्टीमेटली 12वें स्केल की सीट्स कम हो गई, 15वें की बढ़ गई सर। इस तरह ऑडिट ने एक और स्केल उठाया, छठा सर। तो छठे में सर कुछ लोग छठे से 9वें में गए सर, 9वें की 2 पोस्ट बढ़ गई, छठे की कम हो गई। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ के अंदर ही हमने पेमेंट की है सर। ऑडिट को दोबारा वेरीफाई भी मैंने करवा दिया सर। एक्सेसिव तो सर आज भी हमारे पास इस वक्त 1948 सीट सैंक्शन हैं, जिसमें से 1400 लोग काम कर रहे हैं सर। उस वक्त तो मजीद कम लोग काम कर रहे थे सर। एक्सेस का तो आप वेरिफिकेशन करवा लें, आप री-वेरीफाई करा लें ऑडिट से। ऑडिट को मुतमईन करना है आपने सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 119, पैरा नंबर 19.4.12.13 सर। इरेगुलर परचेज ऑफ एलपी मेडिसिन ड्यू टू नॉन अवॉर्डिंग ऑफ बल्क सप्लाई टेंडर सर। ये सर 9.3.6 मिलियन की टोटल मेडिसिन इन्होंने परचेज़ की थी और रेगुलर टेंडर अवॉर्ड नहीं किया था, जिसकी वजह से ये महंगी परचेज़ की गई सर, अमाउंटिंग टू 93 लाख। जी
सर इसमें ऑडिट ने टोटल 11 नंबर ऑफ़ मेडिसिन को सर पॉइंट आउट किया। उसमें से सर हमने अपना रिकॉर्ड ऑडिट को दिखा दिया। प्री पीएससी में ऑडिट ने 6 आइटम्स को एक्सेप्ट भी कर लिया सर कि जो हमने टेंडर किए किसी फर्म ने पार्टिसिपेट नहीं किया सर। उसके बाद बाकी बच गए सर 5 आइटम सर। 5 आइटम में सर 3 फर्म्स ऐसी हैं जिनकी रिकवरी बनती थी, हमने ड्यू रिकवरी कर ली सर उसकी। एक फर्म को जो सप्लाई ऑर्डर दिया गया उसने विद इन टाइम लिमिट प्रोवाइड कर दी सर, उस टाइम के बाद हमने एलपी नहीं की सर। एक फर्म ऐसी थी जिसने सप्लाई नहीं की सर, उसकी हमने जो सीडीआर थी वो फोरफिट कर ली सर। तो इस पैरे में सर जो ड्यू रिकवरी जितनी बनती थी हमने 100% रिकवर कर ली है। और दोबारा प्री पीएससी की डायरेक्शन के ऊपर सर मैंने ऑडिट को दोबारा रीवेरीफाई भी करवा दिया था सर। थैंक यू सर। इसमें सर इशू मेन ये है कि टेंडर जो है इन्होंने सर्कुलेट किया था 4 जून 2020 को किया सर। परचेज ऑर्डर इशू किया 24/10/2020 को सर, आफ्टर लैप्स ऑफ 4 मंथ्स। और इसकी वजह से सर इस दौरान इन्होंने एलपी की। तो अगर ये टेंडर टाइम पे अवार्ड हो जाता तो सर ये डिफरेंशियल बनता ही ना। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव लैब से हम वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। कुछ रिकवरी हमने वेरीफाई की है, वो बात सही कह रहे हैं। तो मैं हाउस के नॉलेज में ये बात ले आऊँ कि असल पैरा ये है सर, इसकी सेंस ये है कि वो सर रेट भी फाइनलाइज हो गए, रेट कोड भी कर दिए फर्म्स ने, उसके बावजूद इन्होंने एलपी करते रहे। आपके परफॉर्मेंस इश्यूज और फाइनेंशियल कंट्रोल की तरफ ऑडिट बता रहा है, उसको आप ज़रूर करेक्ट फरमाएं, उसको दुरुस्त करें। आइंदा ये इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इसको थोड़ा बेहतर करें सर। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? फरहान सईद सर। आप क्या हैं? मैं डायरेक्टर फाइनेंस हूँ सर। एमएस साहब भी आए हैं? जी सर। जी सर। एमएस साहब डायरेक्टर फाइनेंस इज वेल प्रिपेयर्ड एंड वेरी एलोक्वेंट। जी सर। सेटल करें। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट पैरा 123 पेज नंबर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान के पैरा 19.4.12.18 सर। ये भी उसी से रिलेटेड पैरा है। ये जो एलपी की गई थी इसका कॉस्ट डिफरेंशियल 32 लाख का था और इन्होंने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं किया। मैं खाली ये पिछले पैरे में इसका फेट डिसाइड हो चुका है। जी सर, सेम पैरा है सर, उसमें 3 आइटम सेम ही है सर। ठीक है फिर सर। थैंक यू सर। इसमें साहब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कितने बेड हैं? 550 बेड हैं। जी सर। कैसी पोजीशन है वहाँ पर? पेशेंट्स की कितनी? पेशेंट ओवरलोड तो ज़्यादा है हमारे पास, 750 तक पेशेंट्स होते हैं। हमारा 150 बेड ऑक्यूपेंसी रेट है। सेक्रेटरी साहब काइंडली चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ऊपर ज़रा तवज्जो दें। मैडम हमने अभी भेजी है, लेटेस्ट भी लेटर भेजा है 778 बेड्स के हवाले से, और अभी हमने भेजा है डिपार्टमेंट को, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। नोटिफिकेशन हो जाए उसका। इसके अलावा सर जायका भी वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर हमें असिस्टेंस देने लगा है और वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करके देंगे और साथ इक्विपमेंट वगैरह भी देंगे। उसका हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पेपर जो है वो PFAC में लेके चले गए और मोस्ट प्रॉब्ली अगले महीने के अंदर हम इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के पास उस ग्रांट के ट्रांसफ़र के लिए भी चले जाएंगे फॉर चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान ओनली। ओके, बट ये हॉस्पिटल का लोकेशन डिफरेंट है उससे? द सेम प्लेस सर। सेम प्लेस कंजेस्टेड है वो प्लेस, शहर के अंदर है सर। जी। नेक्स्ट सर पेज नंबर 126, चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान 19.4.17.13 नॉन सप्लाई ऑफ मेडिसिन बाय फर्म एंड नॉन फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी सर। 5.3 मिलियन का सर परचेज ऑर्डर दिया था फर्म को, ग्लोबल फार्मेसी को, लेकिन उन्होंने दवाई सप्लाई नहीं की टाइम पे, जिसकी वजह से इनको मार्केट से परचेज करना पड़ा। तो सिक्योरिटी जो फॉर फीचर कर ली सर, उसको हमने वेरीफाई किया है। बाकी जो रिस्क परचेज का जो एलिमेंट है वो ये मैनेजमेंट खुद बताएगी। ये कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया आपने? सर इसमें ना फर्म को ये कोविड का टाइम पीरियड था, 2 सप्लाई ऑर्डर दिए गए सर, मतलब एक शेड्यूल बनाया गया सर। फर्म ने पहला शेड्यूल दे दिया सर, एक शेड्यूल फर्म ना दे सकी सर। हमने उसकी जो एक शेड्यूल की अमाउंट बनती थी वो फोरफिट कर ली सर, ऑडिट ने उसको वेट भी कर लिया सर। लेकिन हमने सर्टिफिकेट दिया है कि उस मेडिसिन को हमने एलपी पे परचेज नहीं किया। वो जो पहला शेड्यूल था सर वही पूरा साल चलता रहा, क्योंकि कोविड में पेशेंट रेशो कम हो गई सर, तो वही मेडिसिन जो फर्स्ट शेड्यूल में मिली थी हमें वही यूटिलाइज हुई, हमें दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्री पीएससी सर हमने जो पहले पोर्शन की सप्लाई उसने दे दी थी सर, ऑडिट ने कहा जी उसकी भी आप CDR फोरफिट करें, कंप्लीट CDR फोरफिट करें सर। हमने वो भी उसी कर लिए सर। 2,66,000 की पहले की सर, 2,81,000 की CDR और फोरफिट कर ली सर हमने। तो इसमें फाइनेंशियल लॉस कोई नहीं हुआ सर हम। ठीक है,
सर मैं रिस्क परचेज की बात कर रहा हूँ कि जब उन्होंने उसको फर्म ने सप्लाई नहीं दी तो डेफिनेटली उन्होंने लोकल परचेज की है और वो हाई रेट पे की होगी। वो कह रहे हैं हमने लोकल परचेज की नहीं सर वो कह रहे हैं पिछले स्टॉक से ही हमने उसी कंपनी के पिछले स्टॉक से हमने पूरा कर लिया था। जी साहब ना बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त मेहनत करके आते हैं, लेकिन जो ऑडिट पैरा होता है उससे 2 हाथ आगे चले जाते हैं। यहाँ पर कहा था सर नॉन सप्लाई ऑफ मेडिसिन, अब रिस्क परचेज पता नहीं बीच में कहाँ से इस ऑडिट पैरा का हिस्सा नज़र नहीं आया। मतलब उन्होंने सोचा है अभी ना, तो वो मतलब है कि हम अगर अपने आप को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रखें जहाँ तक ऑडिट पैरा था तो मेरा ख्याल है हमारे लिए आसानी होगी। असल में इश्यूज़ ये नहीं होता कि ऑडिट पैरा क्या है, उसका बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है और इतना हाईएस्ट फोरम है, हम इसको पूरे इसके एंगल्स भी बताने पड़ते हैं कि इसको भी देखा जा सकता है। इसमें सब कभी कभी परफॉर्मेंस एक्ट आ जाता है, कभी आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट आ जाता है, कभी मैनेजमेंट एस्पेक्ट आ जाता है। तो हमने और डीजी ऑडिट का काम है आपको तमाम एस्पेक्ट्स आपके आगे पेश करे, डिसीजन आपने करना है फोरम में। जो एग्जिस्टेंस आपने अपनी एग्जिस्टेंस जो करनी है ना, सेक्रेटरी साहब इज राइट। असल में दुनिया जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट तो बहुत पीछे चला गया, वो तो इंटरनल उस पर ही करते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। सर ये देखें ना इनकी कंप्लायंस कितनी अच्छी है, उस पर उनको बेनिफिट। नेक्स्ट सर है पेज नंबर 129 है 19.4.21.6। Sir, this is regarding non-deposit of cost of films of MRI in CT scan into government treasury। ये 2.1 मिलियन की है सर, जो ये MRI और फिल्म्स की कॉस्ट है ये इन्होंने ट्रेजरी में डिपॉजिट करवानी थी जो नहीं करवाई सर। जी सर इसमें अगर आप प्री पीएससी के मिनट्स भी देखें सर, तो उस वक्त सर इंस्टीट्यूशन ने ये अमाउंट पीएलए में डिपॉजिट करवा दी थी सर। ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अमाउंट जो है सर ये बिफोर दी ऑटोनोमस बॉडी है तो इसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाना चाहिए, तो सर वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में सारी की सारी अमाउंट डिपॉजिट हो गई है, चलान दोबारा वेरीफाई भी करवा दिए सर। सारे काम करके आए हो लेकिन 2 साल लेट हो थोड़ा जा। नहीं सर उसमें एक्चुअली मीटिंग आप हो गया तो सर इस वजह से ये आप वेरीफाई करवा दें, वेरीफाई नहीं हमने की अभी। वेरिफिकेशन करें सर डीजी ऑडिट? जी सर वेरीफाई करवा दें, कर लें, अगर ये बात दुरुस्त है तो इसको। इसके बाद सर पेज नंबर 131 है। नहीं ओ हाँ पहले वो सर बढ़िया है, साढ़े खाते से आ रही है रिकवरी, साढ़े खाते से रिकवरी आ रही है। Page number 31. No, but it's a feather in our cap, no? Sir. सर इसमें 131 पेज नंबर पे है, ये भी नॉन डिपॉजिटेड रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो इनके अलाइड स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिकवरी थी, रिकवरी इन्होंने जमा करवा दी सर। इशू वही है कि इन्होंने अभी ट्रेजरी में जमा नहीं करवाई थी, अगर करवा दी है तो वी विल वेरीफाई। सर करवा दिए सर। वेल डन फरहान साहब, थैंक यू सर। देखिए हमें तो रिसीट हमें तो रिसीट आ रही है सर, हम तो इसलिए कह रहे हैं कंप्लायंस बहुत अच्छी है। कंप्लायंस बहुत अच्छी है और फाइनेंस वाले ना ऐनक नीचे रख के ये सोच रहे हैं कि दाल में कुछ काला होगा। स्पेशली द चेयरमैन इज फ्रॉम मुल्तान, बड़े खुश हैं कि मुल्तान की कंप्लायंस बहुत अच्छी है। हाँ नहीं अच्छी बात है। ये एक पैरा है जिसे quite concerning। जी सर पेज नंबर 135 है पैरा सर। ये सर बेसिकली पैरा एम्बेजलमेंट से रिलेटेड पैरा है, एम्बेजलमेंट ड्यू टू नॉन डिपॉजिट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम प्राइवेट पेशेंट्स। सर पेज नंबर 135 इसमें सर ये मोहम्मद सलीम खान है जो कि वो एक लो रैंक का था एम्प्लॉई, उसको इन्होंने सजा दी है लेकिन उसका ऊपर तक किसी प्रॉपर इंक्वायरी भी नहीं हुई और ना ही किसी उसके अलावा किसी को इन्होंने अकाउंट फॉर किया सर इस मामले के लिए। सेक्रेटरी साहब ये हमारे पास एक ये किसकी बात आ रही है? अच्छा सेक्रेटरी साहब हमारे पास ये एक पब्लिक पटिशन भी आई है रिगार्डिंग दिस केस। नाउ इट इज़ स्टेटेड इन दिस पटिशन कि जब सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन थी कि वो खुद इसको करेंगे, प्रोब कर रहे हैं, इसका इंक्वायरी सेक्रेटरी साहब के अंडर होनी है, तो उस इंक्वायरी का वेट नहीं किया गया और ये जो सारा बर्डन है वो एक स्केल 10 के ऑफिसर के ऊपर डाल के उन्होंने इस केस को क्लोज किया है। एंड व्हाट वी वांट इज़ कि इसको एक दफ़ा आप दोबारा से इंक्वायर कर लें, आप खुद इसकी इंक्वायरी आप खुद कर लें। And this person is also saying that he was unheard and he was condemned unheard। तो आप इसको आप खुद पर्सनल हेयरिंग के लिए भी सेक्रेटरी साहब बुला लें
एंड देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर जाती है, कहाँ तक ऊपर जाती है, एंड इफ़ द सेड पर्सन इज़ इनोसेंट काइंडली इसको बहाल कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट सर पेज नंबर 138 है, लॉस ड्यू टू नॉन ऑक्शन ऑफ टक शॉप, जूस पॉइंट एंड मोबाइल इजी डॉट पॉइंट्स 2 मिलियन। सर ये तमाम चीज़ें इनके पास अवेलेबल थी लेकिन इसको अभी तक ऑक्शन नहीं किया गया, जिसका ऑडिट ने कैलकुलेट किया है अमाउंट तकरीबन 2 मिलियन पर एनम। क्या कंडेम्ड आइटम है ये? नहीं सर, ये टक शॉप है, जूस कॉर्नर है और मोबाइल इजी शॉप है सर। इसकी नॉन ऑक्शन है? नॉन ऑक्शन है सर। जी डायरेक्टर फाइनेंस। सर इसमें ऑडिट ने पॉइंट आउट ये किया है कि जो हमारी कैंटीन है सर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल आपने भी शायद देखा हो सर, उसकी छोटी सी एक कैंटीन है सर, उसमें ऑडिट ने कहा जी उसमें जूस पॉइंट लगाया हुआ है तो आप उसको सेपरेट वो करें, सेल पॉइंट। उसने टक शॉप बनाई है तो उसको सेपरेट करें। एक ही वेंडर है? एक ही जगह है सर, वेंडर एक ही है, वेंडर एक ही है और एक ही जगह पे सर उसने ये चीज़ें अल्टीमेटली देखें, जूस पॉइंट जो है सर वो कैंटीन पे जूस ही मिलना है, टक शॉप भी जूस पे होनी है। तो हमारा पॉइंट अभी ये था कि जो उसको हमने लीज पे सबलेट की है सर जगह, उसने उसके अंदर ये चीज़ें रखी हुई थी, कोई सेपरेट पॉइंट नहीं था, कोई सेपरेट सेल पॉइंट नहीं था, एक ही जगह पे एक ही कैंटीन में ये चीज़ें थी, तो ये रिकवरी नहीं बनती सर किसी तरह भी सर। उसका ऑक्शन हुआ था प्रॉपर? सर प्रॉपर ऑक्शन हुआ और 1.2 मिलियन 12 मिलियन रुपीज़ सर वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट हुए। ऑडिट का सिर्फ पॉइंट अभी ये है कि उसमें उसने जूस पॉइंट रखा हुआ है, टक शॉप रखी हुई है या कोई इजी लोड रखा हुआ है, तो ये उसको अलग आप वो करें सर। ऑडिट वो उस टक शॉप के अंदर पिज़्ज़ा बनाए, बर्गर बनाए, जूस बेचे, गन्ने का जूस बेचे, इसमें हमें वो सर तो पैसे दे रहा है जी ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में तो मेंशन होगी ना चीज़ें सर, जो भी आपने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है उसमें से चीज़ें मेंशन होगी कि क्या क्या काम करना है परफॉर्मेंस के। व्हेन यू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैंटीन आप लिखते हैं या समोसे देने हैं या क्या देना है उसमें लिखते हैं आप क्या व्हाट कैन ईटेबल्स और जो जी है बहुत बारीकी में का लेंस लगाया डीजी ऑडिट ने। सेटल ये इन्होंने ऑडिटर को वहाँ अप्रोच नहीं कराया ना सर। फरहान साहब नेक्स्ट टाइम ऑडिट वाले आए तो आपने इसी टक शॉप से उनको जूस पिलाना है, अगर ना पिलाया तो उसका 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 मैं पैरा मैं खुद बनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ईगोस हम किसी की हर्ट करने नहीं बैठे, हमें डीजी साहब नेक्स्ट। सर पेज नंबर 141 है, पैरा नंबर 19.4.24.9 अननेसेसरी परचेज की हुई है सर, अननेसेसरी परचेज एंड ब्लॉकेज ऑफ मनी ड्यू टू एक्सेस परचेज देन रिक्वायरमेंट 51.96 मिलियन। इसमें सर कुछ मेडिसिन थी, कुछ दूसरा स्टॉक था और कुछ काफ़ी ओल्ड स्टॉक पड़ा हुआ था जो कि यूज़ नहीं किया था सर। तो कीपिंग इन व्यू द वैल्यू ऑफ मनी, इस ऑडिट ने पैरा बनाया कि आपने ज़्यादा परचेज कर ली। एक साइड पे तो आप लोगों को लाइबिलिटीज़ की पेमेंट नहीं कर रहे और एक साइड पे आप ज़्यादा पेमेंट करके स्टॉक लेके रख रहे हैं। स्टॉक है किस चीज़ का? 49 आइटम्स हैं सर। मेडिकल हॉस्पिटल है, मेडिसिन का ही स्टॉक रखेगा ना डीजी साहब? जी सर, मेडिसिन स्टॉक है हमारा। ये है कि आपने अननेसेसरी परचेज की और कुछ स्टॉक 2 साल से पड़ा था, कुछ ओल्ड स्टॉक था, कुछ फ्रेश स्टॉक था। जी सेक्रेटरी साहब। सर इसमें टोटल नहीं एक्सपायर भी कुछ था नहीं, इसमें टोटल 49 आइटम्स थे सर। ना ना डायरेक्टर फाइनेंस साहब नहीं, आप नहीं तैयारी, एमएस साहब की तैयारी है? एमएस साहब आप ब्रीफ करेंगे इसके ऊपर। ये कौन सी मेडिसिन हैं जो ऑडिट कह रहा है कि आपने ऐसे ज़्यादा ले लिए हैं, ओवर एंड अबव स्टॉक रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है? असल में सर फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा आप स्टॉक रख नहीं सकते, बेसिक बात इसमें ये, अगर वो ये आप बता सकें। सेक्रेटरी साहब को देखें, पैरा नंबर पर लिखें सर। इसमें कुछ सीवीपी लाइन थी, डिस्पोजेबल थे और बाकी सिरिंज वगैरह थी, ये चीज़ें जो नॉर्मल आइटम यूज़ की होते हैं जो वार्ड में, और ये सर हमने विद इन कोई एक्सपायरीज की नहीं उसमें यूज़ किए हैं सर। माइक में बोलिए ना, आवाज़ नहीं आ रही सर। इसमें अगर मुझे आप अलाउ करें सर, ये लिस्ट सेक्रेटरी साहब। हाँ जी सर, जो मेरी इसके अंदर मुझे जो डिस्कशन हुई थी, मुझे ये बताया गया था कि एसेंशियली ये जब हम अननेसेसरी परचेज की बात करते हैं तो ये वो पीरियड है, अगेन हम इसको कोविड के अंदर हम लेते हैं
कि प्रोक्योरमेंट तो हुई थी 1920 की और कोविड का ऑनसेट हुआ है मार्च अप्रैल के अंदर से, तो वो एकदम हॉस्पिटल्स के अंदर या तो पेशेंट लोड डाउन हुआ, तो हमें ये बाद में ऑडिट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमने अननेसेसरी प्रोक्योर किए हुए थे बिकॉज चीज़ें कंज्यूम नहीं हुई, लेकिन जिनकी शेल्फ लाइफ वगैरह अवेलेबल थी वो फ्रीक्वेंट सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर कंज्यूम हो गई हैं। सो इसको हम अननेसेसरी नहीं कह सकते सर। इसको अननेसेसरी इसलिए भी नहीं कह सकते कि वो स्टॉक जो था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया एंड लेटर ऑन इट वाज आल्सो यूटिलाइज्ड। सर आप स्टॉक को अगर एग्जामिन करें तो उसमें से काफ़ी आइटम एक्सपायर्ड हो गई हैं, अगर मतलब पहले को इन होल अगर समझें तो कुछ 2025 सर इसमें एक सर 22 की भी 21 की भी आइटम कंप्लीट कर लें फिर आप बात सर 22 की भी 21 की भी आइटम जो हमारे पास डिटेल है, इन्हीं की डिटेल्स है, इन्हीं के साइन है, तो वो एक्सपायर्ड भी हो गई हैं सर। इससे साबित हो गया दिस वाज अननेसेसरी परचेज्ड। कितनी हमने पहले कोविड से पहले की हुई थी, कोविड आ गया, पेशेंट लोड कम हो गया एंड दैट स्टॉक वाज मेंटेन। सर कुछ 8000 इंजेक्शंस हैं, कुछ एयरवेज हैं, ये चीज़ें जो एक्सपायर हो गई इस दौरान। अमाउंट कितनी बनती थी? अमाउंट सर इसकी सेपरेट निकाल लेते हैं, ये भी काफ़ी हैवी अमाउंट बनती है इसका प्रोपोर्शन। टोटल अमाउंट है 5 करोड़ 19 लाख की, तो आई थिंक डेट वुड बी अराउंड 10%, ये एग्जैक्ट आपको बताते हैं। जी सर इसमें बाकी आइटम्स तो थे वो विद इन एक्सपायरी लिमिट थे, सिर्फ 6 आइटम थे जिनकी एक्सपायरी का इशू था, जिसमें से हमने 4 की रिकवरी कर लिए और 2 फर्म्स की, एक की CDR हमारे पास पड़ी हुई है, एक फर्म हमारे पास काम नहीं करी, वो कार्डियोलॉजी में काम कर, उनको हमने लेटर भी भेज दिया है रिकवरी का और इंशाल्लाह उनसे हम रिकवरी कर। ये बड़ा इजी है हो गया रिकवरी करना सर। आप ये तो रिकवरी बड़ी इजीली हो जाएगी आप। जी सर हम ये कर लेंगे इंशाल्लाह। रिकवरी करें जी सर, 4 की हमने कर ली है सर, 4 आइटम्स की थी, बाकी हमारे सारे यूज। आप 100% रिकवरी करके 2 महीने आपके पास है। ठीक, ये 4 साल से एक्सपायर्ड हुई है, रिकवरी अब हो रही है सर। 2 महीने में रिकवरी करनी है आपने। ठीक, थैंक यू सर। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 146 पे है। एंड सेक्रेटरी साहब डिस्प्लेजर नोट फरमाएं, जो SDACs के डिसीजंस हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हॉस्पिटल्स बहुत देर से कर रहा है, काइंडली मेक श्योर कि वो जल्दी होने चाहिए। सर ये भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान का पैरा 19.4.31, ये सर एक फ्रॉड हुआ था मिसअप्रोप्रिएशन का 3.9 मिलियन का, जो कि फ्रॉड फर्दर रेफर हो गया था नैब को, एंड वो जो प्रोसीडिंग है स्टिल पेंडिंग है, इसके बारे में मैनेजमेंट बताएगी कि अपडेट पोजीशन क्या है सर फ्रॉड की। इसमें सर फेक बिल थे, अनऑथराइज्ड पेमेंट थी और अनऑथराइज्ड विड्रॉल से इन फोर्ज्ड नेम्स। जी सर इसमें 3.9 मिलियन के सर बिल्स थे एट दैट टाइम जब नॉन ऑटोनोमस बॉडी था सर, उसमें सर हमने जब इसको टेकअप किया तो सर 3.9 मिलियन की रिकवरी हमने कर ली है सर 100%, लेकिन केस चूँकि नैब में चल रहा था सर, उसको हमने नैब को लेटर लिखा, लेकिन हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं आया कि क्या फेट है सर। पीडा की क्या कार्रवाई की आपने? He has already been dismissed from service. रिमूव फ्रॉम सर्विस। रिमूव फ्रॉम सर्विस 100% है। जी सर। फिर ये पैरा क्यों आ रहा है DG ऑडिट? सर ये केस तो भी पेंडिंग है नैब के पास ना, तो जब तक केस 2-4 साल 5 साल 10 साल चलता रहेगा और पैरा चलता रहेगा सर, वो फिर उसका जो डिसीजन वो करेंगे उसके मुताबिक ही हम आप पेश करेंगे आपके पास। ओके, अब हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ कोर्ट जो पैरा सेटल। जी सर डू दैट। नहीं सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा DG ऑडिट से कि ये अगस्त फोरम की जो इख्तियार है वो आप लोगों ने इस्तेमाल किया कि नैब एक बंदा डिसमिस हो चुका, रिकवरी हो चुकी, तो नैब को रेफर किसने किया था ये केस? PSC ने किया था? नहीं सर, ये मैनेजमेंट किया था, महकमे ने किया था। मैनेजमेंट ने किया जी, मैनेजमेंट ने किया था। वो क्रिमिनल लाइबिलिटी है सर, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी है जी, वो एक क्रिमिनल लाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिया गया ना सर कि उसको कहीं और सजा दी जाएगी। डिसमिसल एज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वो तो हो चुका, डबल जेपडी हो जाएगी, डबल जेपडी है सर। मेरा ख्याल है वो चलने दें सर, इसको हम पैरे को सेटल करते हैं, रिकवरी अगर हो चुकी है। मैंने पैरा सेटल कर दिया, लेकिन वो चलता रहेगा तो उसको 2 सजाएं नहीं मिल जाएंगी सर। वो नैब का काम है और सर उस एक्यूज के ऊपर है कि उसके ऊपर कैसे वो लेके फैसला करते हैं सर। इसमें ऐसे है कि अगर मिसाल के तौर पे महकमे ने, डिपार्टमेंट ने केस भेजा था, अगर ये समझते हैं कि उसको सजा मिल गई है तो महकमा वापस ले ले केस तो महकमे ने भेजा है। नहीं, उसकी नेग्लिजेंस के ऊपर को क्रिमिनल, सेक्रेटरी साहब आपने एक वर्ड यूज़ किया था, क्रिमिनल लाइबिलिटी तो उसके ऊपर बनती है, तो फिर तो सर लेकिन कोर्ट क्योंकि अदालत है वो इन व्यू लेगी कि डबल जेपटी नहीं होनी चाहिए, एक दफ़ा इसको सज़ा मिल गई है, अगर दैट इज इफ द नैब कोर्ट डिसाइड्स कि ये सफिशिएंट है तो वो कोर्ट फैसला करेगी। जी लेट मी क्लैरिफाई मोर सर कि ये एक सिविल लाइबिलिटी जो उसकी लाइबिलिटी बनती थी वो तो हमने डिफरे कर ली, विड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना था वो ले लिया। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी इज अ सेपरेट स्ट्रीम जो कि नैब उसको सेपरेटली हैंडल करता रहेगा।
39 लाख का केस नैब ने कब से लेना शुरू की? उस वक्त तो लेता था, अब शायद कुछ सीलिंग लग गई है। सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट सर कि अभी ये केस वहाँ पर है कि नहीं है सर। हाँ, एंटी करप्शन भी कर सकता था इसको। जी फाइनेंस सर एट दैट टाइम मेरे ख्याल में नैब ने खुद ही टेकअप किया था, ये जब न्यूज़ पेपर वगैरह में आया था, डिपार्टमेंट में नहीं भेजा सर केस। ओके। उसके बाद दोबारा अब नैब उसको कर रहा है या उसने एंटी करप्शन को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन हमें कोई डिटेल नहीं मिल रही सर उसकी। पर बड़ा आप परसू करें, ये पैरा हम सेटल कर रहे हैं। सर थैंक यू। दूसरा सर ये चीज़ भी समझने वाली है कि इसमें ये इनका मैं सर इधर अच्छा कि इन्होंने ये जो तमाम बहाली के फॉर्म है सारे वो इनके ख़त्म हो गए हैं, या ये लोग अक्सर भी जब डिसमिस हो जाते हैं फिर किसी न किसी फॉर्म से बहाल होकर फिर वापस आ जाते, उस हवाले से भी हमें कोई पहले से अभी कोई एग्जिस्टिंग उनकी पड़ी है सर? पहले डिपार्टमेंट लेवल पे सर वो हुआ, उन्होंने फिर सेक्रेटरी साहब को अपील की थी सर, वो भी डिसमिस हो गई थी सर, उसमें भी उनको फेवर नहीं उसके मिली बाद सर। वो जो है इनका जो कोर्ट है जो जिसके जरिए सर पीएसटी का आइडिया नहीं कि वो वहाँ गया है, हमें वहाँ से कोई सर वो नहीं है सर, इंटीमेशन नहीं है। हाँ, ऐसे बंदे को दरवाजे बंद होने चाहिए। ये मैं दरवाजे नहीं, गेट भी मैं बंद होना इसमें चाह रहा था कि अगर हमने इस पे प्रॉपर हम इस पे एक्शन ले ही रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर फिर इसको जो है वो, ताकि आप ये कह रहे हैं ना कि इसको हम ख़त्म कर दें, इस हवाले से कि हमने इसको निकाल भी दिया और इसकी हमने रिकवरी भी कर ली, केस नैब में भी चल रहा, तो अभी हम इसको आगे लेके ना चलें इस पैरे को। पब्लिक इस हवाले से ज़रा देख लीजिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने वही जिस तरह चेयरमैन साहब के सामने सबमिट कर रहा हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के प्रव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि वो रिकवरी जो होनी थी वो हो चुकी, ठीक है, उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सजा मिलनी थी वो मिल चुकी सर। ठीक है। अब एक सेपरेट एक क्रिमिनल लाइबिलिटी है जो कि डिपार्टमेंट ने समझा कि इसको वहाँ पे भी सजा मिलनी चाहिए, उसका सर इस अकाउंटेबिलिटी से रिकवरी से कोई सेक्रेटरी साहब जो एक चीज़ हम भूल रहे हैं कि जो नैब है वो भी फाइनेंशियल जो क्राइम है उसको देखती है। जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है उसके लिए एक और अदालत भी होती है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग देखती है। हमारे पास ये बैठे हैं, बट इफ द केस में पैरा सेटल्ड है, जो केस नैब में चल रहा है वो मेक श्योर करिएगा कि वो इसको डबल जेपडी के उसमें ना ले आए। सर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल जिसने ये केस रेफर किया था नैब को, वो उसको कैसे परसू कर रहा है। यू नेवर नो कि ऑलरेडी केस एंटी करप्शन को ट्रांसफ़र हो गया हो, क्योंकि एक खास पेक्यूनरी लिमिट है कोर्ट केसेस की जो कि नैब में जा सकते हैं। मेरे ख्याल ये 39 लाख के केस के लिए शायद नैब केस भी नहीं लेगा सर। 5 करोड़ तक के केसेस, 50 करोड़ तक के केसेस तो सारे एंटी करप्शन को आते हैं सर। ऐसे ही है सर। तो ये भी केस मेरे ख्याल एंटी करप्शन को ट्रांसफर हो गया होगा। ठीक, ये चेक करके इसकी रिपोर्ट दे दीजिएगा। जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 148 है, पैरा नंबर 19.4.4 1.4। सर ये अगेन वो इशू आ रहा है जो कि पिछली बार आपकी डायरेक्शन आई थी नॉन प्रोडक्शन रिकॉर्ड का, जिसके लिए पीएससी की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस हैं और एजीपी ऑर्डिनेंस भी वाज़ेह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं करते और नॉन प्रोडक्शन रिकॉर्ड का पैरा बनता सर। तो इस वजह से हम ऑडिट ही नहीं कर सके सर। अहमद साहब सर इसमें सर एक बैंक अकाउंट था सर, जो ऑपरेशनल बैंक अकाउंट था, उसके ऑडिट ने कहा कि उसकी कैश बुक बैंक स्टेटमेंट नहीं दी गई सर। कैश बुक भी सर मैंने प्रोवाइड कर दी थी और बैंक स्टेटमेंट भी सर उस टाइम की बैंक ऑफ पंजाब से लेके मैंने बैंक पहले भी दिखा दी थी सर, आफ्टर डायरेक्शन ऑफ प्री पीएससी दोबारा भी सर दे दी थी, ऑडिट ऑफिसर साहब को दिखा भी दी थी सर। जी साहब ने देखी है सर? दिखानी नहीं होती, हमने ऑडिट करना होता है सर। ये बैंक नहीं होता कि उसकी पूरी ट्रेल ऑफ मनी होता है, रिसीट्स कितनी आ रही है, एक्सपेंडिचर कितना होता है, वाउचर्स होता है और हमें उसको सर रिकंसाइल भी करना होता है। और आपने तो इट डिमांड्स अ प्रॉपर ऑडिट सर, डिटेल्ड ऑडिट। 3 साल बाद दे रहे हैं, दिखाने का मामला। ये तो कंसीलमेंट ऑफ जो रिकॉर्ड है, ये तो बड़ा सीरियस ऑफेंस है सर। पहले ना ये एक्चुअली चिल्ड्रन हॉस्पिटल नॉन ऑटोनमस बॉडी था, वहाँ पर कोई फाइनेंशियल वो नहीं थी, ना डायरेक्टर फाइनेंस था ना ऑडिट ऑफिसर। जब हमने चार्ज लिया सर, मुझे 6 माह हुए हैं सर, तो मैंने ये सारी चीज़ें स्क्रूटनाइज की हैं सर, तो ये मैंने प्रोड्यूस किया है सर। बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें इसके ऊपर सर। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 151 है, पैरा 19.4.4 1.17 नॉन प्रोडक्शन रिकॉर्ड सर। ये सर ये भी नॉन प्रोडक्शन रिकॉर्ड का पैरा है, इसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स है सर, सोशल सिक्योरिटी के थे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट थे, प्रूफ्स थे और वार्ड कैंटीन के वार्ड टेंडर से। ये सर कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया। और ये सेक्रेटरी साहब ये इस केस में होता है जो लोअर स्टाफ होता है उनको, ये जेनिटर लेवल के ऊपर उनके साथ ही ये होता है केस कि उनको पैसे कम देते हैं वो और रख लेते हैं बीच में पैसे। इसके ऊपर SDSC ने प्री PSC ने क्या किया
सर इसका अगर आप डिसीजन पढ़े ना सर, द पैरा वाज डिस्कस्ड इन डिटेल एंड आफ्टर डिटेल डिस्कशन द फोरम वाज सेटिस्फाइड विद द स्टांस ऑफ ऑडिट फॉर्मेशन। सर हमने सर सारी चीज़ें दिखा दी, सिवाय सर एक चीज़ थी सर, उसकी जो सोशल सिक्योरिटी की कंट्रीब्यूशन थी सर, वो उसने उस वक्त डिपॉजिट नहीं करवाई थी सर। उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि सर वो बाकी सर जितने डॉक्यूमेंट्स हमने दिखा भी दिए और प्री PSC सर सर्टिफाई भी हो गया सर हमारा। सर फिर वही अर्ज है कि दिखाने से मामला नहीं चलता, हमने ऑडिट करना है इसका प्रॉपर, और हमने आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। हम किस तरह ठप्पा लगा सकते हैं इनके रिकॉर्ड पे विदाउट डूइंग ऑडिट? हाँ वही कुछ तो रिस्पॉन्स हुआ है, कुछ का नहीं दिखाया गया। बट हैविंग सेड दैट, ये जो ऑफिसर हैं जिनके ऊपर ये लाइबिलिटी बन रही है वो कौन है? डॉक्टर जाहिद अख्तर, DDO थे वो? जी सर ये रिटायर हो गए MS से, ex-MS थे। ये अकाउंट्स आप फरमा रहे हैं कि उस वक्त कोई अकाउंट्स ऑफिसर नहीं था, आखिर ये रिकॉर्ड किसी ने तो प्रोड्यूस करना था, किसी ने तो सर इसको किसी की जिम्मेदारी तो थी। सर इस पैरे को देखें ना सर, इस पैरे में सर 10 से 11 पॉइंट थे सर, 6 पॉइंट SDAC सेटल कर चुका है सर। इस अगर इसको पढ़ लें सर, 6 पॉइंट SDAC सेटल कर चुका है सर। बाकी जो 6 पॉइंट थे सर वो हमने दिखा दिए सर, प्रोवाइड भी कर दिए और ऑडिट अगर आप पढ़ें सर उसने एक्सेप्ट भी कर लिया सर। एट द एंड सर सिर्फ एक पॉइंट पे सर डिबेट रह गई थी कि वो जो सोशल सिक्योरिटी की अमाउंट उसने एम्प्लॉइज़ की उसमें देनी थी वो कंपनी ने नहीं दी थी सर। वो कागज़ आपके पास है? आप बाहर चले जाए, वो कागज़ आपके पास है वेरिफिकेशन के लिए? जी सर देखें इसमें पढ़े ना सर, इसमें आप वो वेरीफाई करें। सर पहली बात तो ये कि हमें पूरा रिकॉर्ड देंगे। 11 ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि इस ऑडिट पैरा के अंदर ऑडिट ने मेंशन की, जिसमें से सर जिस तरह इन्होंने MS साहब और डायरेक्टर फाइनेंस ने बताया कि कुछ SDAC के लेवल पे सेटल हुई। सो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये है कि 9 सेटल हुई हैं, 2 के ऊपर ऑब्जर्वेशन जो अभी सेटल नहीं हुई हैं। वो EOBI की कंट्रीब्यूशन उन जेनेटर्स की जो कि कॉन्ट्रैक्टर ने जमा करानी थी और पैसे की कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए जनवरी के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को हॉस्पिटल ने लिखा है, वो वेरिफिकेशन करा के सर हम ऑडिट के सामने ले जाते हैं कि उसने क्या वो कंट्रीब्यूशन जमा करवाई है कि नहीं करवाई है सर। बिल्कुल ठीक है, हम करवा देते हैं। डीजी साहब इसको सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जैसा सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं आप करें। सर वो मेरी फिर अर्ज वही है जिस तरह आप ऑर्डर करेंगे कि सर ये हमें डॉक्यूमेंट देंगे, हम इसका सर प्रॉपर ऑडिट करेंगे या तो सर आप नेक्स्ट ऑडिट में डाल दें। आप जिस तरह कहेंगे अभी अपने ऑडिट शुरू करना है इनका, करें जी सर, हाँ जी ये मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट ऑडिट में कर लें आप। जी बिल्कुल करें, राइट ठीक। नेक्स्ट सर अगली फॉर्मेशन है सर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, ये हम कल से लेंगे जी। राइट सर, थैंक यू सर। यहीं से करें।